Yeah, good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, Good morning, sir. sir. Good morning, sir. Good morning, all of you. Good morning, sir. Perceive, perception. Good morning, sir. Okay, Dr. Sunny, shall we start? Sunny, sir, would you allow us to start the session? Ma'am, I think we can start. Sir, firstly, very good morning and welcome on behalf of all the participants and on behalf of HRDC, MMTDC, I welcome you to the group, sir. Sir, before we start, just a humble request that right now, including you and me, there are only 35 individuals, and you regularly 50 plus individuals are joining in. So, if you allow, we can wait for 2-3 more minutes. Sure, sure. Sir, meanwhile, I would like to introduce you about the group. So, sir, this group we have registrants of around 147 registrants, but around 60 participants joined in, and regularly around 50 plus participants are coming every day. Sir, we have participants from 26 different states. So, just a humble request that if we go in a bilingual mode, it will be more beneficial for them. And also, as per the subject or discipline thing, the participants are from sciences, regular sciences, social sciences, the arts and literature too, and physical sciences also. So, so that please consider that also. And after I think 2 minutes, we can start, sir. Okay, okay. Thank you so much, sir. Shreya ma'am, are you ready with sir's brief profile? Yes, sir. I'm ready. Okay. Just Just need I'll just to minutes. sir, I will just message our participants on WhatsApp group, and then we can in 2 minutes we are going to start. Deepak sir, also I'd like to inform you that these Dr. Shikesh Nivasan sir has taken the initial session where sir has talked about all the modes of learning, blended and asynchronous, synchronous. Sir has talked about that. And yesterday, Dr. G. Mathili ma'am has also talked about video creation and video editing. So today, these topics has been covered, and also he has covered a somewhat part of e-assessment also. Okay, that's enough. Sure, sir. So, sir, shall we start? With your permission, I think 40 individuals are there. Rest people will join in. Please. Okay. So, participants, welcome to the day 8 of 11th Faculty Reduction Program, Guru Dakshita at MMTCC DAV Indore. For this session, we have Dr. Deepak Bisla sir with us. So, sir, on behalf of all the participants, on behalf of Institute and on my personal behalf, I'd like to welcome you to the group, sir. Namaskar. For starting the session, I request Dr. Shreya ma'am to please start with sir's brief profile. And participants, this is going to be a very active and interactive session for you people, since today sir is going to be talking on a very crucial topic, which was your people demand, that how you are going to make e-content, how you are going to integrate e-content. So the finalization of all those 3-4 things which we are learning from last 4 days, it is going to be today. And today sir is going to be making telling you how you can make your own LMS, that is Moodle. And we are going to use Genomio, I think, for that. And over to you, sir. Over to ma'am for starting the first speech.
Good morning, sir. Good morning, Deepak sir, and all other my batchmates. Thank you, sir, giving me opportunity to introduce Deepak sir. Dr. Deepak Besla, working in IT department at B.R. Ambedkar University, Delhi. Sir has completed his PhD in technology, effectiveness, and intervention in higher education. Deepak sir worked as many MNC companies in corporate sector. He has been utilizing technology since 2012, both at the graduate and postgraduate level. Sir, area of interest is e-learning, blended learning, MOOCs, cybersecurity, cyber law, and university-wide academic cloud e-governance, planning, setup, customization, and execution. Sir is member of National Cyber Defense Research Center and has written a number of articles on different aspects on database, cybersecurity, university automation, e-governance, etc. Sir is also IT external expert and examiner in many universities and colleges. Today we are having Dr. Deepak sir. He is a very valuable resource person and delivers skill-based technical session and lectures across the country for faculty development program, faculty induction program, refresher course, and orientation course, like in Delhi University, Banaras Hindu University, Mizoram University, Varanasi, DPS Mahila University, Kurukshetra University, MDU Rohtak, and IEPA Delhi, Central University Jammu, Central University Haryana, Jammu University, Dibrugarh University, Mizoram University, and so many. There are so many universities where sir has participated and enriched the people with his vast knowledge. Today we are having sir with us, and I hope so that many of the session in future we are going to attend and enrich ourselves with Deepak sir knowledge. Sir, today we are going to welcome you to enrich ourselves and my batchmates with your vast knowledge. Welcome, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. So let's start. Okay. So good morning, dear friends. So let's start the session now. Good morning, sir. Good morning. Before I start, can you just confirm me कि you can see on my video good morning is appearing. ये mirror Yes. Yes, mirror तो नहीं आ Yes, रहा sir. Good morning is appearing. Yes. now it's reverse or correct है mirror तो नहीं आ रहा है reverse तो नहीं नजर आ रहा नहीं, No, correct. right. No, sir, incorrect. Correct way. क्या ऐसे ठीक Correct आ रहा है, sir. correct आ रहा है okay yeah okay so let's start the session now yes okay so I have 4 sessions with you today, 2 sessions, and tomorrow morning again 2 sessions. So in these 4 sessions we are going to discuss a lot of things. I think it's enough time to discuss about Moodle and so many things we are going to discuss here in these 4 sessions, right? So as I got the feedback that we have to start with the Moodle, right? So you already did a lot of things. So now let's see how to integrate these all things with the Moodle, right? So main target is Moodle. But before directly start the Moodle, I think we have to understand why Moodle. There are a lot of learning management system, right? Why we choose the Moodle, and let's understand the complete ecosystem to deliver a course online, to design a course online. You did a lot of things, right? So you can now I'm going to show you a complete picture how to design a course online and where this LMS stands and what you already covered in these previous 4 or 5 sessions, 4 or 5 days, right? So what is the steps to achieve this step by step approach, right? Complete structure समझने की कोशिश करेंगे, and then you will automatically evaluate yourself कि what we already covered and what more need to be covered. So many things we have, right? So if time permit, we are also going to discuss other things like if time permit, we can see the AI. Let's see if time permit, we will talk about the artificial intelligence also, and few safety tip when we are using the technology. Let's see how much we are able to discuss in these 4 sessions, right? But the main target is how to design a course on Moodle, right? So before jumping directly to the Moodle, so let me share my screen now. Okay. Yeah. So from here, let's first understand these slides. Yeah. So how to design online course, step-by-step approach. Let's see first. So stage 1 says
Stage 1 says कि we must have a understanding of content licensing structure. Content licensing structure, and that we can understand with the help of OER. That is stage 1. Okay, we'll discuss on detail as well. Then stage 2 says content development. Prefer to use open source software. So when we're talking about content development means my quadrant 1 and 2. Then stage 3 about content storage, safety and sharing. How to store the content, how to share the content. I think how to share that we are discussed today in detail. My content, that is stage 3. Stage 4 is about how to disseminate this content using the learning management system. So you can see LMS in the last stage. And once we reach to the LMS, then quadrant 3 and 4 will come into the picture. So here we have a minimum 4 quadrant approach to run a course online. So जो भी हम course को design करें, 4 quadrant approach, this is the minimum requirement to run a course online. Let's say we decided that we are going to run a 10 module course, a 10 module, and my each module should reflect this 4 quadrant. 4 में ना सही, first, second, third, minimum. Fourth can be a common across the course. Discussion forum can be a common, but quadrant 1, 2, 3 that should reflect in my each module, right? So आज का हमारा target है this LMS. You can see here LMS, correct? So it means LMS is a last stage, but before reaching to the LMS, step 1, 2, 3, so इनकी understanding बहुत जरूरी है. Only after that we can start the LMS. And hope in the previous session, just I think Dr. Sania said कि आपने content development देखा, how to do design the videos and so many things, right? So that's come under the content development. So content development means my quadrant 1 and quadrant 2. Quadrant 1 is video lectures. Quadrant 2 is other than video lecture. Other than means my anything, audio, video, PPT, presentation, kuch bhi other than video is my quadrant 2. So that we have to design. So in the previous sessions, you design your content. आपने बहुत सारा content design किया होगा for the content development stage पर लेकर, और उससे भी पहले the most important thing we have to understand content licensing structure. The most important thing, कंटेंट लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर, कि जो भी कंटेंट हम डेवलप कर रहे हैं या जो भी एग्जिस्टिंग कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, व्हाट इज द लाइसेंसिंग टाइप ऑफ दीज कंटेंट? यू नो, कॉपीराइट इज very sensitive matter, and we have to save our skin from the copyright issues, correct? So that's why to just avoid these issues, to understand the licensing structure, first and the most important thing, OER, open educational resources. So have you did the session on OER or not? Session हुआ आपको OER पे? Yes, sir. Why? Sir, it is Yes, sir. Generalize. Sir, RC Sharma after you is going to take a specialized session for OERs, entirely dedicated to OERs. Great, wonderful. So RC Sharma sir and me, we are from the same university, right? We are Ambedkar University. We are from the same university and same campus. We are here. See, we all are a team. Professor Srinivas sir and the Sharma sir and me, we all are a team. So we know what need to be covered and किसने क्या step cover किया. So we are not going to repeat the things again. So that's a very good thing. Right. So first thing is the OER, open educational resources. So we must have a awareness of OER. So OER का session you have with Professor Sharma. So it's very important. Before using any tools and technology, before using internet, I think the first thing we have to understand कि licensing structure क्या होता है. कॉपीराइट है, क्रिएटिव कॉमन है, ओपन सोर्स है, बहुत सारी चीजें हैं और वो बहुत जरूरी है. कोई भी कंटेंट जब हम आगे डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, शेयर करेंगे, उसका लाइसेंसिंग टाइप क्या होगा, बहुत जरूरी है. So that's why I said that the stage 1 is about content licensing structure, OER, right? So stage 1 OER itself है 2 sessions. So now I'm not going to touch what is the OER, detail में नहीं जा रहा हूँ मैं OER के. So you have another session. So please go through the OER. Then move to the next thing is
Next thing is says ki okay, let's now understand ki we have enough awareness of OER. That's good. So next is ki we have to develop the content. We have to develop the content. So content development में already आपने बहुत सारे softwares देखे होंगे for the content development, videos बनाना, PPT presentation, audio, different video editing के softwares. You already gone through that, right? Can you let me know few names? आपने कौन-कौन से softwares पर hands on किया है? Few names. OBS shortcut. Okay, two. Video My- content. Steve AI tools भी थे. Which one? Pre-cam. इस Okay. Steve AI, Steve AI. गामा में किया है सर. Gamma AI, Good. QReport. and Okay. Microsoft PowerPoint में भी किया है 2021 में. उसमें भी वीडियो लेक्चर्स बना सकते हैं. Good. PowerPoint. Right. कोई और सॉफ्टवेयर अभी तक मुझे सिर्फ Audacity 7 मैं अभी तक सिर्फ 7 ही काउंट सर कर जिसपे वर्कआउट किया है वो गामा ही थोड़ा जो है जिसपे कॉन्फिडेंस आया है अभी तक जितने सेशन हुए हैं उसमें. बाकी सब पे तो एक ओवर थ्रू गया है. And because we are not from the computer science background, so it is really hard for us to be a very computer savvy like others. Okay. Don't worry. Right. Steve AI. So approximate 10 softwares you have gone through. आपने 7-8 मुझे काउंट करवाए. So let it assume कि 10-15 आपने softwares. सर इसके अलावा मैंने थोड़ा और अपने से भी सर्च किया है. स्टूडियो, DID, ये सब मैंने अपना खुद AI बनाया है उसमें. और उसमें Good. Precam, Steve AI. Cam Studio. Screenshot. Screencast. So nice. So these are the software. See, technology is changing very fastly. आज हम जिन softwares की बात कर रहे हैं for the content development, future में ये change हो जाएंगे. नए सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, नए वर्जन्स आ जाएंगे, राइट? न्यू AI या कोई और टेक्नोलॉजी आ जाएगी. So these are the changeable things. Softwares change होते रहते हैं. So you just counted me few 10, 15, 20 softwares आपने मुझे काउंट करवाया कि which you have gone through that for the content development. Okay, I'll show you a list of the software कि कितने सारे सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं for the content development. Have a look now. Have a look. Slide 1. Each slide I've written 20-30 software. Slide 2. Slide 3. Slide 4. Slide 5. Slide 6. Slide 7. Mobile apps भी हैं. Slide 8. Slide 9. 10, see 11, 12, AI, artificial intelligence जो आप बात कर रहे थे, few one, and you can see AI again. Around 60 के अराउंड मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं, but there are many. So 14-15 slides तो मैंने ही आपको दिखा दी, and each slide we have lot of softwares. Means plenty of softwares हैं हमारे पास जिनकी हेल्प से हम कंटेंट को डिजाइन कर सकते हैं. Plenty of softwares, right? कितने सारे softwares हैं. अब इतने सारे softwares पर hands on करना वो तो possible नहीं है, right? एक करेंगे जब तक 10th नंबर पे जाएंगे पहला भूल जाएंगे, 11th पे जाएंगे दूसरा भूल जाएंगे. Being a woman we have a limitations. इतने सारे तो possible नहीं है, right? So कुछ softwares पर discussion हम करेंगे, देखेंगे किससे क्या बनाया जा सकता है when we are transacting the content on the model, right? So अभी कंटेंट डेवलपमेंट पे देखते हैं एज एन अगर रिक्वायरमेंट हुई, इफ यू हैव ए डाउट्स तो वी विल गो विद द कंटेंट डेवलपमेंट. अदरवाइज मैं इसको अभी के लिए नेक्स्ट फेज की तरफ मूव करता हूँ बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लिटिल बिट अवेयरनेस की कंटेंट डेवलपमेंट कैसे किया जाता है. सो इन बिटवीन अगर डाउट्स कहीं किसी भी सॉफ्टवेयर को लेकर कहीं डाउट्स लगते हैं हाउ टू डू दिस, सो प्लीज फील फ्री टू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स और आस्क मी एनी टाइम. सो हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे, राइट? सो ओके, नाउ लेट अज्यूम कि हमने कोई भी XYZ सॉफ्टवेयर यूज किया एंड वी डेवलप द कंटेंट. कोई भी XYZ सॉफ्टवेयर, सो दीज आर जस्ट ए सॉफ्टवेयर टू डेवलप द कंटेंट. आप कोई भी यूज कीजिए एंड डू नॉट आस्क मी कि विच वन इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर, राइट? रीजन इज ऑल आर बेस्ट. जिस सॉफ्टवेयर पर आप कंफर्टेबल हो दैट इज बेस्ट फॉर यू, राइट? अगर आप कहते हो गामा इज गुड, OBS इज गुड, दैट इज बेस्ट फॉर यू. ऑल आर इक्वली गुड. इट्स डिपेंड कि मेरा कंफर्ट लेवल कौन से सॉफ्टवेयर के साथ कैसा है. सो कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज करके अगर मैं कंटेंट डेवलप कर पा रहा हूँ दैट इज बेस्ट फॉर, राइट? कोई भी. सो देयर आर प्लेंटी ऑफ सॉफ्टवेयर.
राइट. सो किसी भी सॉफ्टवेयर पे अगर इफ यू आर लुकिंग कि मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि आई एम नॉट एबल टू रीच पर्टिकुलर दैट सॉफ्टवेयर, देन लेट मी नो, आई विल सजेस्ट सम अनदर वन कि आपकी रिक्वायरमेंट इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से मीट हो सकती है. राइट. सो दैट डिपेंड ऑन माय रिक्वायरमेंट कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं किस तरह का कंटेंट डिजाइन करना चाहता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं सॉफ्टवेयर को पिक एंड चूज करूंगा एंड यूज करूंगा. और ये चेंज होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी चेंजिंग वेरी फास्टली, न्यू सॉफ्टवेयर आएंगे, न्यू वर्जन आएंगे, नए अपडेट्स आएंगे, बदलते रहते हैं. राइट. एआई है आज की डेट में. आई कैन शो यू लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर द कंटेंट डेवलपमेंट इन एआई. एक क्लिक्स पर वीडियो बन जाएगी, एक क्लिक्स पर ऑडियो, एक क्लिक्स पर प्रेजेंटेशन, राइट, एंड सिंगल क्लिक्स पर वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, एवरीथिंग वी कैन डू इट. सिंगल क्लिक, जो पावर पॉइंट बनाने में मुझे बहुत समय लगता है, ऑन सिंगल क्लिक आई कैन डू इट. जैसे आई थिंक गामा आपने देखा है, ऐसे बहुत सारे, इट्स नॉट वन सिंगल नहीं है, एक काम करने के लिए वी हैव प्लेंटी ऑफ सॉफ्टवेयर. राइट. सो इट्स डिपेंडिंग मेरी रिक्वायरमेंट कौन सी सॉफ्टवेयर को लेकर मीट कर रही है, जस्ट यूज दैट एंड डेवलप योर कंटेंट. राइट. सो इफ यू नीड लेट मी नो, मैं आई के सॉफ्टवेयर भी आपको बताऊंगा कि जिसकी हेल्प से सिंगल क्लिक्स पर वीडियो कैसे बनाई जाए. वीडियो बनाने में कितने एफर्ट लगते हैं, इट 1 आवर, हाफ आवर, बट आई कैन शो यू द टेक्निक की एक क्लिक्स किया और वीडियोस बन गए, एक क्लिक्स किया और ऑडियो, पीपीटी, इमेज, ये मेरा इमेजेस, कुछ भी आई कैन क्रिएट इट. राइट. एआई बहुत कुछ सॉफ्टवेयर है. राइट. सो दैट इज ओवरऑल कंटेंट डेवलपमेंट. सो एंडलेस लिस्ट है, एंडलेस टूल्स हैं, आप एक वीक भी काम करें तो वो खत्म होने वाले नहीं. राइट. सो दैट इज ए कंटेंट डेवलपमेंट, क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2, video lecture and other than video lecture. Right? Quadrant 1 and 2, my content. This is my raw material that should be ready before moving to the LMS. That should be readily available. Right? Okay, मेरा कंटेंट, आई एम अज्यूम कि मेरा कंटेंट अब रेडी है. सबने अपना वीडियोज, अदर देन वीडियो, पीपीटी, प्रेजेंटेशन, ऑडियो, जिस भी तरह का आपका कंटेंट है आपके डिसिप्लिन से जो मैच करता है, आई अज्यूम आपने कंटेंट डेवलप कर लिया. करेक्ट. नाउ व्हाट नेक्स्ट? कंटेंट डेवलप करने के बाद, विच इज माय रॉ मटेरियल, कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज करके कंटेंट डेवलप के बाद, द नेक्स्ट स्टेज इज कि मुझे उस कंटेंट को अपलोड करना है. वेयर? ओनली द 2 लोकेशन आई हैव. फर्स्ट, if it is video, I need to upload it on YouTube. If it is video, I need to upload it on YouTube. If it is other than video, किसी भी तरह का stuff है मेरा, I need to upload it on my Google Drive. So I have now only 2 locations where I need to upload my content. जो भी content मैंने develop किया है, right? YouTube and Google Drive. 2 location पर मेरा content ready होना चाहिए. Right? Why YouTube and Google Drive? There is a lot of reason behind that. बहुत सारे reason है. I'll let you know. There are reason behind that. Biggest and the main, I feel the जो benefit है, that is the control over the content. Control over the content. For example, आपने कोई content, कोई video बनाया, कोई presentations बनाया, and you share your video presentation directly to the student on their WhatsApp, on their email, on the LMS directly, any source से आपने directly student को share कर दिया. And after few days, month, you realize कि there is some problem with that content, कुछ copyright का या और कोई XYZ reason है, that should not be in a public domain. So can you recall that content which you already shared? वो तो गया public में. How you can recall it? How you can update it? You can't. Means you lost your content over the content. Right? But if I'm sharing my content via YouTube and Google Drive, then I have the control all the time. So if it is video में कोई problem है, I'll go to my YouTube channel, उस YouTube channel पर जाकर वीडियो को unlisted कर दूंगा या private या delete कर दूंगा. Right? So that will automatically disappear जहाँ पर भी मैंने share किया होगा via YouTube. अगर presentation share किया है via Google Drive, so I'll go to my Google Drive, उस कंटेंट को एनी टाइम आई कैन डू द मॉडिफिकेशन इन गूगल ड्राइव या शेयरेबल लिंक को हटा दूंगा. सो दैट विल ऑटोमेटिकली डिसअपीयर वेयरएवर आई शेयर. सो ये कंट्रोल ओवर द कंटेंट बहुत जरूरी है, एंड दैट आई विल गेट थ्रू यूट्यूब एंड गूगल ड्राइव. यूट्यूब एंड गूगल ड्राइव, दैट इज अ कंट्रोल ओवर द कंटेंट. फर्स्ट एडवांटेज. अनदर एडवांटेज इज storage.
So if you get a chance to run a course on, let's say, Swayam or any digital initiatives, or if you've gone through the digital initiatives, we have like the Swayam Prabha, EPG Pathshala, E-Pathshala, right? NDL, National Depository. ये सब क्या है? These are the digital initiative by the Ministry of Education, right? So if you get a chance to run a course और किसी भी तरह का कंटेंट अगर मुझे अपलोड करना है, लेट्स से स्वयं का एग्जांपल लेते हैं, अगर स्वयं पर मुझे अगर कोर्स रन करना है तो we'll get a limited storage, 1 or 2 GB, right? And you know 1 GB is nothing. If I upload 10 video, then 1 GB will only. So any LMS, कोई भी LMS जहाँ पर भी आप कंटेंट रन करेंगे, कोई भी LMS, every LMS we have storage limitation. Every LMS. So to utilize this storage, we are using this Google Drive and YouTube. So now we are uploading the material via Google Drive and YouTube to the LMS. So अब मैं 1000 of video भी upload कर दूं LMS पर, जो मेरा storage है LMS का, that will remain as it is रहेगा. Right? आपने कभी अगर क्रॉस चेक किया हो एनी LMS, स्वयं पर आपने अगर कभी देखा हो, स्वयं all the videos are running via the show you randomly, अगर मैं कोई कोर्स ओपन करूं स्वयं का, कोई भी randomly, just all courses, रैंडम कोर्स को कोई भी LMS चेक करें आप, any LMS, you will find videos are running through the YouTube. You can see randomly एक कोर्स ओपन किया, videos are running through YouTube. नॉट जस्ट स्वयं, किसी भी LMS को आप देख लीजिए, इवन आपके यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की जो वेबसाइट्स होती हैं, एवरी वेबसाइट्स वी हैव ए वीडियो गैलरी, करेक्ट? जस्ट चेक आउट दैट वीडियो गैलरी, ऑल वीडियोज आर रनिंग थ्रू यूट्यूब. सो देयर आर रीजन बिहाइंड दैट कि स्टोरेज इज द बिगेस्ट कंसर्न, राइट? पहला मैंने एडवांटेज बताया, कंट्रोल ओवर द कंटेंट, सेकंड स्टोरेज, थर्ड परफॉर्मेंस भी बहुत मैटर करती है. लेट्स से कोई वीडियो बनाई मैंने और डायरेक्टली किसी LMS पर शेयर कर दी, और एट ए टाइम मे बी ये 3000-4000 स्टूडेंट दे आर ट्राइंग टू एक्सेस दैट वीडियो, सो दैट वीडियो परफॉर्मेंस कैन बी डिग्रेड. बट अगर मैं YouTube से शेयर करता हूँ उस वीडियो को, एक समय पर 1 लाख एप्लीकेंट्स स्टूडेंट्स भी आकर एक्सेस करेंगे, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज सारा रिसोर्सेज जो है YouTube का एक्सेस हो रहा है, मेरा LMS इज फ्री, उस पर कोई परफॉर्मेंस का कोई चांस ही नहीं है डिग्रेडेशन का, राइट? सो आई विल गेट द 100% परफॉर्मेंस वाया यूट्यूब. परफॉर्मेंस कभी डाउन नहीं जाएगी. बफरिंग आता है ना वीडियो में कभी, दैट इज डिपेंड कि मेरा सर्वर की स्पीड्स क्या है. सो अगर मैं अब यूट्यूब का यूज कर रहा हूँ तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी. कंकरेंट यूजर अगर हिट ज्यादा आ जाते हैं तो परफॉर्मेंस इज एडवांटेज. एंड अनदर एडवांटेज कि मैं जो वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ, वीडियोस में देखिए, यू माइट बी नोटिस, यूट्यूब में यहाँ एक ऑप्शन होता है सेटिंग में क्वालिटी, राइट? एंड हियर यू कैन सी वी हैव ए मल्टी रेजोल्यूशन. हाईएस्ट रेजोल्यूशन इज HD 1080 and the lowest is 144 pixel. So that multi resolution is automatically managed by the YouTube. If I have a good internet speed, I can view this video in high definition. अगर low है तो मिनिमम 144 पिक्सल पर भी इस वीडियो को मैं देख सकता हूँ. सो दैट मल्टी रेजोल्यूशन ऑटोमेटिकली. सो एज ए कोर्स कोऑर्डिनेटर मुझे क्या करना है, जो यूट्यूब पर वीडियोज अपलोड करनी है, एज मच एज पॉसिबल दैट शुड बी इन हाई रेजोल्यूशन. जितना हो सके हाई रेजोल्यूशन की वीडियोज बनानी है और उनको यूट्यूब पर लेकर जाना है, राइट? रेस्ट यूट्यूब विल मैनेज. So I can go high to low resolution automatically depend on my bandwidth. So अगर मेरा वीडियो ही लो रेजोल्यूशन का होगा तो लो से हाई में नहीं जा सकता. दैट इज ए लिमिटेशन. मैक्सिमम रेजोल्यूशन, इससे डाउन ही रेजोल्यूशंस दिखा सकता हूँ मैं स्टूडेंट को, हायर नहीं. सो मेरा रेजोल्यूशन जितना हाई होगा वीडियो का, राइट, उतना ही मैक्सिमम होगा. या डॉक्टर सर, ये हम कैसे कर सकते हैं रेजोल्यूशन सेट? हाई रेजोल्यूशन पे बनाना है या लो पे? इस डिपेंड कि आप किस तरह के इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, राइट? अगर आप नॉर्मल वेबकैम लैपटॉप से ट्राई कर रहे हैं तो उससे हाई रेजोल्यूशन वीडियो नहीं बनती है. अगर आप कोई प्रोफेशनल कैमरा है, स्टूडियोज में प्रोफेशनल कैमराज से वीडियोज शूट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे हाई रेजोल्यूशन वीडियो बनेगी. अगर कैमरे की क्वालिटी मेरी 4K है, राइट, यहाँ पर मैक्सिमम देख पा रहे हैं आप, HD है 1080, इसके ऊपर भी है 4K. उसके लिए मेरा कैमरा, मैं इक्विपमेंट्स क्या यूज कर रहा हूँ, वो मेरा डिपेंड करता है इक्विपमेंट्स पर.
वीडियो ऑडियो के इक्विपमेंट्स क्या है, मेरा रेजोल्यूशंस क्या है, जिस रेजोल्यूशन में वीडियो बनेगा वही अपलोड होगा। ऑफ कोर्स उसका फिर साइज भी हैवी होगा, राइट। साइज एक 10 मिनट की 4K वीडियो में भी है 2 GB, और एक 10 मिनट की 144 पिक्सल की मूवी में भी है 50 MB, राइट। सो रेजोल्यूशन पे मेरा साइज भी मैटर करता है। सो मुझे अब साइज ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा कि अपन लो में बना रहे हैं बिकॉज ऑफ रिसोर्स कंस्ट्रेंट, तो कोई सॉफ्टवेयर हो जो लो रेजोल्यूशन को हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट कर दे? डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर, एआई के सॉफ्टवेयर्स हैं, लो को हाई में कर देते हैं, बट दे आर पेड, फ्री में कोई नहीं है। पेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, और वो भी एक लिमिटेशन तक। ऐसा नहीं है कि मेरा 144 पिक्सल है और उसको मैं 4K तक ले जाऊं, वो पॉसिबल नहीं है। 144 पिक्सल को मैक्सिमम आई थिंक 720 तक लेके जा सकता हूँ, वो 1080 तक भी नहीं जाएगा, राइट। 2-3 स्टेप्स ही अपग्रेड करता है, वो भी 4K नहीं बना सकता है उसको, राइट। कुछ स्टेप्स अपग्रेड करके, और वो भी पेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, फ्री में नहीं अवेलेबल है, वो भी रेजोल्यूशन को थोड़ा हायर करने के लिए, राइट। सो लो टू हाई जाना बहुत डिफिकल्ट है, हाई टू लो आना बहुत आसान है, हाई टू लो। सो इसलिए मुझे कोशिश करनी है कि जो भी मेरी वीडियोस बने, जितना हो सके हाई रेजोल्यूशन, हाई क्वालिटी की वीडियो बने, और यूट्यूब पर अपलोड करूं। यूट्यूब पर जब अपलोड करता हूं तो स्टोरेज नॉट ए बिग डील, कितनी मेरी चाहे 10 GB की एक वीडियो ही क्यों ना हो, डजंट मैटर। यूट्यूब वी हैव अनलिमिटेड स्टोरेज, आप जितनी चाहे वीडियोस को अपलोड कीजिए यूट्यूब पर, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। यूट्यूब वी हैव अनलिमिटेड स्टोरेज। सिमिलरली गूगल ड्राइव पर भी हमारे पास अनलिमिटेड स्टोरेज है, यस और नो है? सर गूगल ड्राइव पे तो लिमिट है ना? लिमिटेड है सर। बिल्कुल गूगल तो लिमिटेड है 15 GB। 15 GB 15 GB, yes. On our personal Gmail account, we have 15 GB storage limitation. But if we are using Google Workspace account, university account, the official email ID provided via your university to you, then you have 2.5 TB Google Drive storage. हो गया limited? सर फिर एक बात बताइए, जैसे हम लोग हैं, हम तो कॉलेज में हैं सेलेक्टेड, ठीक है, और यूनिवर्सिटी हमारी जयपुर में है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। अब हम कॉलेज में वर्किंग है। अब यहाँ तो ये सिस्टम ही नहीं होता है ना कि आपका पर्टिकुलर ऑफिशियल ईमेल आईडी क्रिएट हो, कौन ऑथेंटिकेट करेगा, ये प्रोसेस है ही नहीं यहाँ तो। बिल्कुल बन सकता है सर मैम। हमारा एनआईसी वाला जो है उसमें रहेगी क्या ये एनआईसी वाला गवर्नमेंट? एनआईसी वाले पे नहीं होता, गूगल वर्कस्पेस आई सेड। सो डजंट मैटर, आपके कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज हैं, आई नो, दे हैव द गूगल वर्कस्पेस एक्सेस। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी को एक्सेस मिलता है, कॉलेज कैन गेट द एक्सेस ऑफ गूगल वर्कस्पेस फ्री ऑफ कॉस्ट। यूनिवर्सिटी कॉलेज इज नॉट पेइंग एनीथिंग टू द गूगल, इट्स अ जस्ट जॉब ऑफ वन। ये बता सकते हैं ये कैसे हम अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि जब कभी हम गूगल स्कॉलर पे अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो वो भी कहते हैं अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी दो तभी आप कनेक्ट हो पाओगे। अब गवर्नमेंट कॉलेज में ये सिस्टम हमें पता ही नहीं, क्योंकि रिसेंटली ज्वाइनिंग है। एग्जैक्टली गूगल स्कॉलर पर आप पर्सनल से नहीं जा पाते, ऑफिशियल अकाउंट से जा पाते हैं, राइट। तो उसका प्रोसेस मैं बता देता हूँ। इट्स जस्ट ए 1 डे जॉब, 1 डे भी नहीं कहूंगा, एक प्रोसेस इज क्लियर, जैसे 2 आवर जॉब, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो ओके, प्लीज पहले तो मुझे बताइए, व्हाट इज आपके कॉलेज का URL क्या है, डोमेन नेम क्या है, वेबसाइट क्या है? सर कॉलेज का नाम तो है सेठ RL सहरिया गवर्नमेंट कॉलेज वेबसाइट क्या है? इस्लाम से है। वेबसाइट तो एक मिनट मेरे को आपको देख के बतानी पड़ेगी, ओके, मैं क्योंकि अभी ऐसी मतलब अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले की ज्वाइनिंग है। तो ओके, व्हाट हैपन, इट्स डिपेंड ऑन माय वेबसाइट URL इज लाइक कि आपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी कोई भी हो, दे कैन गेट द URL ऑफ ac.in, आपने नाम सुना होगा, du.ac.in, bhu.ac.in, right? So ac.in, ac means academic, right? So ac.in, academic.in का जो डोमेन है, that is specifically reserved for the educational institutions, only education institutions, right? और ac.in ऐसा नहीं है कि मैं GoIB उस पे GoStatter पे, GoDaddy पे ओपनली कहीं भी जाऊं और जैसे .com को बाय कर लेता हूं, ac.com ऐसे बाय नहीं कर सकता ac.in, राइट। सो ac.in डोमेन को कंट्रोल करता है गवर्नमेंट एजेंसी अर्नेट इंडिया।
जैसे गवर्नमेंट एजेंसी, वो ac.in डोमेन को कंट्रोल करती है, राइट? सो फर्स्ट, यूनिवर्सिटी कॉलेज मस्ट हैव ए वेबसाइट ऑन ac.in. ac.in अगर नहीं है, अर्नेट इंडिया को अप्रोच करो, गवर्नमेंट एजेंसी है, यू विल गेट इट वेरी इजीली. अगर आप गवर्नमेंट एंटिटी है, वो भी गवर्नमेंट एंटिटी है, आप इजीली यू विल गेट ac.in. सो जो भी आपकी वेबसाइट है, राइट, du.ac.in, ku.ac.in, जो भी आपकी वेबसाइट है, bhu.ac.in, आपको अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज की डोमेन मिल जाएगा ac.in आराम से, कोई चैलेंज नहीं है. जैसे हमारे कॉलेज की तो government.in है, gov.in. नहीं, हाँ. आप ac.in लीजिए, अर्नेट को कांटेक्ट कीजिए, इसे वन डे जॉब है, वन डे, एक दिन में आपको डोमेन मिल जाएगा, कोई बिग डील नहीं है, राइट? ac.in का डोमेन गेट इट थ्रू दी अर्नेट के थ्रू. सो जैसे ही आपके पास ac.in डोमेन आ जाता है, देन कॉन्टेक्ट टू गूगल आपसे कहता है कि जस्ट शो मी योर डोमेन ac.in. दे नीड दैट्स ओनली ac.in डोमेन. उससे वो वेरीफाई करेंगे, you means you are a government entity and free of cost आपको Google Workspace का एक्सेस दे देंगे. So once तो you फिर एक बार बताइए, जैसे अभी हमारी जो वेबसाइट है ना, वो उसके ऊपर है, जैसे हायर टेक्निकल एजुकेशन .rajasthan.gov.in/college/GC काला डेरा, ठीक है? अब हम कहते हैं भैया हमें तो ac.in पे करो, तो अब जो जितना ये पूरा यहाँ का मैकेनिज्म है, कुछ उनका तो कोशिश करो ना भाई, क्यों जाना है आपको ac.in पे? हमारा सिस्टम ही चला रहे हो आपको. भी चेंज नहीं करना है, वेबसाइट जहां चल रही है चलेगी, आपको सिर्फ डोमेन नेम लेना है अर्नेट से, सिर्फ अच्छा, डोमेन. मतलब हमें हमारी एकेडमिक फैटर्निटी के लिए चाहिए कि आप हमें ac.in वाला अप्रूवल दे दो. ac.in का सिर्फ डोमेन नेम लेना है, उस ac.in डोमेन को आपको रिडायरेक्ट कर देना है आपके जो .gov.org.u जो भी आपकी करंट वेबसाइट रनिंग में है, आप उसको उससे डायरेक्ट कर दो, राइट? सो एग्जिस्टिंग सिस्टम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है. ac.in का अर्नेट डोमेन लिया, उसकी रिडायरेक्शन कर दी एग्जिस्टिंग वेबसाइट से. सो अगर मैं दोनों वेबसाइट को हिट करता हूँ, ac.in, तब भी वही वेबसाइट खुलेगा, gov.in, तब भी वही वेबसाइट खुलेगा. वेबसाइट में कोई चेंज नहीं है, राइट? सेम वही ओपन होगा, ac.in हो या gov हो, बट एक डोमेन नेम जरूरी है ac.in का. उसको लेकर आप गूगल को कांटेक्ट करोगे, गूगल आपको जस्ट इन फ्यू आवर्स दे विल गिव यू द एक्सेस ऑफ गूगल वर्कस्पेस. अब गूगल वर्कस्पेस के अंदर नाउ यू कैन क्रिएट अनलिमिटेड ईमेल आईडीज, अनलिमिटेड, और उन हर एक ईमेल आईडी के पास होगा 2.5 TB का गूगल ड्राइव स्टोरेज. Or there are lot of other advantage, not just Google Drive. You will get extra advantage on Google Classroom. You will get extra advantage like Google Scholar पे बहुत सारा ऑफिशियल इंस्टीट्यूट आप एक्सेस करते हैं, जो एक नया पिंडारा बॉक्स ओपन हो जाएगा टू एक्सेस सो मैनी थिंग्स इफ यू हैव ए गूगल वर्कस्पेस अकाउंट. और उसका एक फीचर है कि यू हैव ए 2.5 TB गूगल ड्राइव स्टोरेज. एक फीचर, लॉट ऑफ थिंग्स. सर हमारा विक्रम यूनिवर्सिटी है और कॉलेज का वेबसाइट भी बना हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट भी एमपी हायर एजुकेशन पे बना हुआ है. तो सर क्या प्रोसीजर है कि वेबसाइट और जो हमारा ये डोमेन जो आप क्रिएट करने का बोल रहे हो ac.in, तो कैसे करेंगे? विक्रम यूनिवर्सिटी से हमारा एफिलिएशन है. वेबसाइट क्या है आपकी अभी? सर ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको सर अभी थोड़ी देर में सर इसमें भेज दूंगी, तो फिर चैट बॉक्स में URL उसका. कोई भी वेबसाइट हो, आपकी अभी वेबसाइट होगी xyz.gov.in, राइट? उसमें एमपी हायर एजुकेशन में सर दिया हुआ है पोर्टल के ऊपर, तो उसमें से कॉपी करके सर उसको हम नहीं करेंगे, वो एज इट इज चलेगा. आपको अर्नेट.इंडिया से कांटेक्ट करके ac.in का डोमेन लेना है और उसको आपके gov.in पर रिडायरेक्शन कर देंगे, तो आपकी वो वेबसाइट कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा. जस्ट एक डोमेन चाहिए अर्नेट इंडिया से. अर्नेट इंडिया ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी जो है वो है ac.in, gu.ac.in है. करेक्ट. तो मैं इसको कैसे मतलब यूज कर सकती हूँ? आपके जो भी वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, जो टेक्निकल डील करते होंगे, आस्क टू देम इफ दे हैव गूगल वर्कस्पेस अकाउंट, तो उनसे कहिए आपका ऑफिशियल अकाउंट आपको दे. अगर नहीं है तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू द डायरेक्टली गूगल और आपको गूगल वर्कस्पेस अकाउंट यूनिवर्सिटी को मिलेगा, इंडिविजुअल नहीं. दे विल गिव यू द यूनिवर्सिटी और कॉलेज जिसके पास वो डोमेन है, उनको मिलेगा. तो ऑलरेडी मिला होगा यूनिवर्सिटी को गूगल अकाउंट? सॉरी रिपीट कीजिए सर. जैसे ये ac.in तो है ही, तो इसका मतलब ये वर्कस्पेस यूनिवर्सिटी को ऑलरेडी मिला होगा ना?
हाँ, हो सकता है आपको मिला हो, नहीं मिला है तो ले लीजिए, हो सकता हो आपके पास। सर मेरा जो ईमेल आईडी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेरा ईमेल आईडी जो है उसमें ac.in है। बढ़िया है। तो सर मुझे क्या कांटेक्ट करना पड़ेगा एडमिन से आपके डायरेक्ट? पास ईमेल आईडी है कोई हाँ ऑफिशियल? सर है सर, ऑफिशियल है जिसमें भी मतलब मेरा ac.in। आप ईमेल पर ही लॉगिन करते हो उस ऑफिशियल मेल आईडी? यस सर, अच्छे से करता हूँ। ऑलरेडी है सर, आपको तो कुछ करना ही नहीं है फिर। ओके। उस ऑफिशियल अकाउंट में जाके लॉगिन करके देखिए, यू हैव 2.5 TB गूगल ड्राइव स्टोरेज ऑलरेडी है आपके पास। Yes. खजाना है सर आपके पास और आपको पता नहीं। हाँ हाँ सर। हाँ सर, यही बात हुई है। यस सर, मुझे पता ही नहीं था सर, जस्ट रिसेंटली आई हैव जॉइंड सर दिस यूनिवर्सिटी। राइट, सो बहुत कुछ है। सो अर्लियर फ्यू मंथ बैक ये जो 2.5 TB का स्टोरेज है इंडिविजुअल ईमेल आईडी पर, जस्ट 4 मंथ बैक ये 5 TB था, जस्ट 4 मंथ बैक। अभी इसको रिसेंटली दे रिड्यूस इट, दे चेंज देयर पॉलिसी एंड रिड्यूस इट अप टू 2.5 TB। आई थिंक 2.5 TB इज आल्सो लाइक ए अनलिमिटेड, बहुत होता है एक स्टोरेज, बहुत स्टोरेज है हमारे पास। अदरवाइज ओके, अनदर अल्टरनेटिव की अगर आप यू फील कि 15 GB है आपका पर्सनल ईमेल अकाउंट पर, देन यू नीड नॉट टू बाय दिस एडिशनल स्टोरेज। ओपन ए वन मोर ईमेल आईडी, यू विल गेट मोर 15 GB स्टोरेज। Open third email ID, you will get more 15 GB storage, right? So multiple email account open करने से you will get 15 GB storage, right? Why we need to buy the additional storage? Okay, come back. सर Yes. सर एक सवाल है, जैसे हमारा तो कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, रांची यूनिवर्सिटी के साथ चलता है झारखंड पे। हाँ। एक्चुअली उसमें ac.com नहीं है, वो डायरेक्ट है @gmail.com ऐसा करके कॉलेज का नाम। हाँ। तो सर उससे कोई दिक्कत? आपको गूगल वर्कस्पेस अकाउंट मिला हुआ है? हाँ। वो पेड वर्जन होगा सर। हाँ, पेड वर्जन, जी जी जी। हो जाता है, पेड वर्जन भी होता है, मैं फ्री की बात कर रहा हूँ, राइट? कोई भी डोमेन हो .com .edu कोई भी आप भी ले सकते हो एज ए इंडिविजुअल, आप बाय कर सकते हो, आप भी गूगल वर्कस्पेस को एज ए इंडिविजुअल आप भी खरीद लो। तो आपका कॉलेज, आपके कॉलेज ने गूगल वर्कस्पेस को बाय किया हुआ है, उसका लाइसेंस खरीदे हुए हैं। सो देन डोमेन मैटर ही नहीं करता, जब आपने पेमेंट ही कर दी तो डोमेन मैटर ही नहीं करता, राइट? कोई भी हो वो चलेगा। बट अगर फ्री में कुछ चाहिए तो देयर आर कंडीशन ना। गूगल सेड कि आपको फ्री में मैं दूंगा, बट मैं चेक कैसे करूं कि आप एलिजिबल होगे नहीं मेरे फ्री अकाउंट के लिए? उसको चेकिंग के लिए मुझे चाहिए आपका ac.in, अकेडमिक इंडिया। और अकेडमिक इंडिया कोई ऐसे जनरली बाय नहीं कर सकता, दैट इज कंट्रोल बाय अर्नेट इंडिया। दे नो कि अगर ac.in है तो ये वेरीफाइड ही है, वेरीफाइड है ये ac.in। अर्नेट ने, इंडिया ने वेरीफाई करके ही इसको ac.in दिया है, सो मैं इसको इमीडिएटली अकाउंट दे दूंगा। सो दैट्स द पॉलिसी ऑफ द गूगल, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, राइट? ओके, सो कम बैक टू द क्वेश्चन की वी सेड कि हम थे कि only 2 places we need to upload our content, YouTube and Google Drive। सिर्फ 2 जगह पर मुझे कंटेंट को अपलोड करना है। और उसके एडवांटेजेस क्या थे मेरे पास? एडवांटेजेस आर लाइक कंट्रोल ओवर द कंटेंट, परफॉर्मेंस, स्टोरेज, राइट, मल्टी रेजोल्यूशंस। There are a lot of advantages we have. Okay, so once my content is uploaded on these 2 places, अब बारी आती है LMS की, राइट? अब बात करते हैं LMS की, जिसका हमारा टारगेट है कि LMS पर कंटेंट को ट्रांजैक्ट करना है, राइट? अब LMS की बारी आएगी। LMS पर अब हमें सेलेक्ट किया है कि we are going to transact the content on Moodle, right? Here is the LMS, right? So now we are going to set कि हम Moodle पर कंटेंट को ट्रांजैक्ट करेंगे। Moodle पर क्या ट्रांजैक्ट करेंगे? क्वाड्रेंट 1 मेरा कहाँ पर है? YouTube पर वीडियोस। क्वाड्रेंट 2 दैट इज ऑन माय गूगल ड्राइव, उसको मैं Moodle पर ट्रांजैक्ट करूंगा, Moodle पर इस कंटेंट को अपलोड करूंगा, राइट? ये हम अभी प्रैक्टिकल देखते हैं कि Moodle पर कंटेंट को कैसे अपलोड करेंगे। और एक बार कंटेंट अपलोड हो गया Moodle पर, राइट? कंटेंट अपलोड के बाद देन व्हाट नेक्स्ट? आफ्टर कंटेंट अपलोड ऑन द Moodle LMS, then quadrant 3 we have to start. Quadrant 3 is about assessment. You have gone through already e-assessment tools, आपने कुछ देखे होंगे। So we can integrate that e-assessment tool directly to the Moodle, वो भी कर सकते हैं। और इंटरनली भी Moodle में बहुत सारे असेसमेंट के टूल्स हैं, राइट? सो क्वाड्रेंट 3 हम असेसमेंट देखेंगे, देन क्वाड्रेंट 4 डिस्कशन फोरम। So, इस तरह से हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो वी आर एबल टू डिजाइन ए कंप्लीट कोर्स। सो होप यू आर कनेक्टिंग ऑल दी सेशंस नाउ, जितने भी सेशन अभी तक आपके हुए हैं और आगे होंगे। सो होप यू नाउ आर एबल टू कनेक्ट ऑल दी सेशंस कि हम किस प्रोसेस पर काम कर रहे हैं, करेक्ट?
कंटेंट डेवलपमेंट का तो कौन सा प्रोसेस है, OER है तो कहाँ पर है, LMS है तो हम कहाँ पर हैं, E-असेसमेंट का टूल है तो हम कहाँ पर हैं, राइट? सो एक कंप्लीट पिक्चर आपके सामने आ गई पूरी वर्कशॉप की, करेक्ट? जो जितना भी आपने अभी तक सेशन अटेंड किए और जितने आगे आएंगे, वो सिर्फ इसी कंप्लीट पिक्चर में कहीं ना कहीं फिट बैठते होंगे, राइट? सो दैट्स व्हाई मैं आई कैन से कि each word of this slide जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, each word of this slide itself है 1 or 2 सेशन। सो आप मुझे एक वीक भी पूरा दे तो आई डोंट थिंक ये सिंगल स्लाइड कंप्लीट होने वाली है, बिकॉज आई ट्राई टू इंक्लूड एवरीथिंग हियर। कंप्लीट वर्कशॉप ही इसमें मैंने क्लब कर दी है, आपने जो कर चुके हो वो भी और आगे आने वाली चीजें भी। सो अब बात करते हैं LMS की। सो होप नाउ यू क्लियर कि अब हम कहाँ पर हैं, कौन सी स्टेज पर है कि हमें LMS शुरू करना है, राइट? सो नाउ लेट्स स्टार्ट की LMS पर कंटेंट को मुझे ट्रांजैक्ट करना है। सो अभी तक कोई डाउट, क्लियरिटी है कि हमने क्या क्या किया और आगे क्या करने जा रहे हैं और आज LMS क्यों, राइट? होप यू हैव ए क्लैरिटी नाउ, राइट? सो अब आगे बढ़ते हैं कि LMS पर कंटेंट को ट्रांजैक्ट करना है। ओके, LMS पर भी जाने से पहले मैं यहाँ पर 10 मिनट और लूंगा बिफोर डायरेक्टली स्टार्ट द Moodle। देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई Moodle? व्हाई Moodle? कैन एनीवन लेट मी नो व्हाई Moodle? कुछ माइंड में आइडिया हो क्यों? To make session more interactive and to reach the vast area of students. Okay, ऐसे तो किसी भी LMS पर जा सकता हूँ मैं, कैनवस है, ओपन एडेक्स है, कोई भी LMS यूज कर लूंगा, सबका मोटिव यही है। Moodle ही क्यों? उसके पीछे कोई रीजन? ओके, आई लेट यू नो। उसके पहले 10 मिनट क्विक लेते हैं, देन पैरेलल हम फिर कोर्स डिजाइन और ये सब शुरू करेंगे, राइट? पैरेलल। ओके, क्विकली लेट्स हैव ए लुक कि व्हाई Moodle। सो उसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। यस, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा इसीलिए Moodle। परफॉर्मेंस सबका ही अच्छा है। ओके सबका ही अच्छा है, परफॉर्मेंस भी सबका अच्छा है, सारे बहुत अच्छे हैं। ओके, आते हैं, कोई नहीं, सोचिए बहुत अच्छा है। सेशन शुड बी इंटरेक्टिव मैम, आई लाइक इट कि आप कुछ ना कुछ बोल पा रहे हैं। सो इट शुड बी इंटरेक्टिव कि हम भले ही ऑनलाइन हो, बट गिव अस ए फील कि हाँ हम ऑफलाइन ही हैं हम, राइट? सो कुछ सीक्वेंशियल मिलेगा ओपन ऐसा सोर्स कुछ? है इसलिए, बिकॉज ऑफ द ओपन सोर्स। स्टूडेंट ओपन सोर्स एंड सीक्वेंशियल ऑर्डर कुछ मिलेगा इस टाइप से मे बी। ओके, गुड सर, स्टूडेंट फ्रेंडली एंड स्टूडेंट लर्निंग अप्रोच है। ओके, गुड, बढ़िया। They can learn easily in a sequence manner. सिस्टमेटिक फॉर्म में मिलेगा सर। ओके, गुड सर, गुड। चलिए अब ये देखते हैं, 10 मिनट में क्लैरिटी आ जाएगी कि क्यों Moodle हम क्यों ले रहे हैं। ओके, सो नाउ फर्स्ट स्लाइड, व्हाट इज द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड ए डेफिनेशन। LMS की डेफिनेशन क्या है? You can see the definition of LMS: a software application or web-based technology used to plan, implement, and assess a specific learning process. Focus on that word, specific learning process. So it's not a website. It's not a website, right? Websites are just one-way traffic. Websites are just one-way traffic. But LMS is, we have two-way traffic. Both way we are interacting to the students, right? So it's not a website, it's a kind of a portal, we can say, and where we have to understand their specific learning process. Okay. Then as a teacher, what I am looking into the LMS में मेरे पास I can run the course in all mode of teaching, online, blended mode, right? That should run all kind of devices, course design करना, interact करना, synchronous, asynchronous, सभी mode में पढ़ा सकूँ। दिस इज माई टिपिकल रिक्वायरमेंट कि एक LMS में होनी चाहिए, सिक्वेंशली होना चाहिए, हर डिवाइस पे रन होना चाहिए, फीचर्स होने चाहिए। तो जो भी आप सब ने अभी जो फीचर्स मुझे बताए कि ये हो सकते हैं, सो दिस इज अ टिपिकल रिक्वायरमेंट मेरी कि ये एक LMS में होने चाहिए, करेक्ट? नाउ वी हैव ए 3 टाइप ऑफ LMS: प्रोप्राइटरी LMS, ओपन सोर्स एंड क्लाउड बेस्ड। क्लाउड बेस्ड को जनरली वी कैन से SaaS मॉडल भी हम बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज, SaaS मॉडल भी हम उसको बोलते हैं, क्लाउड बेस्ड। अब तीनों के like we have this proprietary LMS. There are a lot of proprietary LMS, like we have Desire to Learn, Brightspace, Blackboard, so many. We have to buy the license. Then we can use it,
राइट, ये फ्री में अवेलेबल नहीं है, वी हैव टू लाइसेंस बाय कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल में अवेलेबल है, दैट इज द प्रोप्राइटरी एलएमएस। जैसे हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, एसपीएसएस, टाटा, ईव्यू, मैथमेटिका, राइट, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, प्रोप्राइटरी आर्टिकल्स है, वी हैव टू बाय देयर लाइसेंस, ओनली देन वी कैन यूज इट। सो ऐसे ही एलएमएस भी प्रोप्राइटरी है। देन सेकंड इज ओपन सोर्स एलएमएस। ओपन सोर्स में भी बहुत सारे एलएमएस हैं, कैनवस है, मूडल है, स्काई, चिंगला, बहुत सारे ओपन सोर्स भी अवेलेबल है, करेक्ट, जो फ्री में अवेलेबल है, ओपन सोर्स। थर्ड वी हैव क्लाउड बेस, जिसे हम सैस मॉडल भी कहेंगे, सैस मॉडल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वो है हमारे पास, गूगल क्लासरूम है, इंस्ट्रक्चर कैनवस है, जिनोमियो मॉडल है, बहुत सारे हैं, ये मेरा सैस मॉडल है। यू कैन सी कैनवस और जिनोमियो मॉडल दोनों सैस मॉडल में भी हैं एंड ओपन सोर्स में भी हैं, दोनों, राइट। ऐसे बहुत सारे एलएमएस हैं जो ओपन सोर्स में भी अवेलेबल हैं एंड सैस मॉडल क्लाउड एप्लीकेशंस में भी अवेलेबल। सो ये दीज आर द थ्री टाइप्स, कुछ एग्जांपल्स। अब तीनों को प्रोस एंड कॉन्स देखते हैं, तीनों के क्या है, देन वी विल एबल टू डिसाइड कि किस में क्या है और कैसे कौन सा यूज करें, राइट। सो प्रोस एंड कॉन्स ऑफ प्रोप्राइटरी एलएमएस, ओपन सोर्स एंड क्लाउड बेस। प्रोप्राइटरी के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? Proprietary LMS, see, these are very reliable product. They are so wonderful features, wonderful approach they have, और support and training वो भी हमें instantly हमेशा available रहती है। They made it after lot of training and testing. बहुत ही beautiful proprietary LMS, बहुत beautiful products। But the disadvantage is these are not cheaper. You have to spend a lot of money. Only then we can use it. और ऐसा भी नहीं है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो, दीज आर अवेलेबल ऑन ए सब्सक्रिप्शन मॉडल बेस्ड, सब्सक्रिप्शन, राइट। सो मींस एवरी ईयर वी हैव टू बाय द रिकरिंग कॉस्ट, एक तरह से पे करनी होगी, राइट। और उसमें मेरा सॉफ्टवेयर मेरा भी नहीं होता, कॉपीराइट मेरा सॉफ्टवेयर के नहीं होते हैं, दैट इज विद द कंपनी, सिर्फ मेरा कंटेंट होता है, राइट। सो दिस आर द डिसएडवांटेज वी हैव। ओके, दूसरे में देखते हैं ओपन सोर्स। ओपन सोर्स की एडवांटेज क्या है? इट्स अवेलेबल फ्रीली, एनीवन कैन डाउनलोड, कस्टमाइज इट, मॉडिफाई इट एज पर देयर रिक्वायरमेंट, फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी इसको डाउनलोड करे, इंस्टॉल करे, जैसे चाहे आप इसको यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? इन एनी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर देयर मे बी ए वल्नरेबिलिटी हो सकती है। वो किस तरह की वल्नरेबिलिटी? मीन टू से, लेट्स से बाय डिफॉल्ट most of the open source software username is admin, right, by default. So as a hacker I know username admin है, as a developer I know username admin है, right. So hacker का आधा काम तो हो गया, username तो पता है, बस पासवर्ड ही तो क्रैक करना है, right. So these are the vulnerabilities we have. So ऐसे by default paths होते हैं, कुछ database के, कुछ programming files के by default paths, by default user names, right? These are the vulnerability, but that is not a permanent. वो developer have to take a pain कि उस by default path को change करे, मैं by default username admin ना रखे कुछ और रख दूँ। So these things we have to change, और ये remove की जा सकती है। But sometime क्या होता है, developer इतना pain लेता नहीं है, जो by default चल रहा है चलने दो, फिर उसमें कहीं ना कहीं attacks आ जाते हैं। But it's not a permanent thing, right? So these are the disadvantages in the open source, so not a big thing we have. Third, we have a cloud application or a SaaS model. Advantage क्या है? Advantage is ना तो मुझे कुछ buy करना, ना download, ना install, right? ना configure, कुछ नहीं करना, just do the registration and use it. Google Classroom कुछ किया, just email ID से register किया और use कर लिया। और Google Classroom मैं कहूँगा it's not a LMS. Google Classroom is a CMS, content management system, और you can say it's a partially LMS. 100% जो LMS की definition है, मैं Google Classroom को उस category में नहीं रखूंगा। It's a kind of a CMS, or you can say it's for the beginners. It is a CMS, content management system, right? That is a Google Classroom. So cloud-based application में advantage क्या है कि we can customize it, no, sorry, we just do the registration and use it. Disadvantage क्या है? We don't know what kind of data security standards they are following at their end. We don't know data security. At any point of time, they can add, upgrade, delete any feature.
कुछ भी विदाउट कंसल्टिंग अस, कोई भी, और वी कैन से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दे कैन शट डाउन द सर्वर, हम कुछ नहीं कर सकते। कल को गूगल क्लासरूम बंद कर दे आप और मैं क्या कर लेंगे? कुछ नहीं, इतना सारा कंटेंट रन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। जस्ट लाइक इन लास्ट ईयर एडमोडो, एक बहुत ही ब्यूटीफुल LMS था एडमोडो, लास्ट ईयर बंद हो गया, वी कांट डू एनीथिंग। जैसे गूगल क्लासरूम इनिशियली कोविड टाइम में गूगल मीट का फीचर इंटीग्रेटेड था, बाद में उसको हटा दिया, अब पेड में कन्वर्ट कर दिया, वी कांट डू एनीथिंग, राइट? सो दीज एप्लीकेशंस, क्लाउड एप्लीकेशंस और SaaS मॉडल एप्लीकेशंस वी आर यूजिंग ऑन द मर्सी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल। सर ये जो CMS है अपना गूगल क्लासरूम, जो कॉलेज मैनेजमेंट साइट्स बनती है वो भी गूगल क्लास ये CMS से ही बनती है क्या? CMS मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सो CMS वेबसाइट भी बनाई जाती हैं। CMS इज ए टर्म कि आप कंटेंट को कैसे मैनेज करोगे। सो वेबसाइट इज आल्सो ए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वेबसाइट का जो बैकएंड्स होता है उसको भी हम CMS वर्ड यूज करते हैं कि वेबसाइट को कैसे मैनेज किया जाए, राइट? So that is a pure CMS. But Google Classroom कहूंगा, that I said कि partially LMS, not a fully LMS. Website तो LMS है ही नहीं. Website is just one-way traffic, broadcasting the information one way. But LMS is a two-way traffic. Both sides we are interacting with the students. So that's why LMS is not a website. So a website and LMS both are separate. और उन दोनों के बीच में कहीं Google Classroom होता है. Okay. Okay, so these are the three point. अब इनमें से हम कौन सा यूज करें, right? So proprietary of course, strike off from the list. You know, being a government agencies, हम पैसा spend करना कितनी बड़ी चीज है, so हम इसको तो ले ही नहीं सकते, right? And cloud application SaaS मॉडल में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारे कंट्रोल में ही नहीं है वो, right? कंट्रोलिंग तो बहुत जरूरी है। इतना सारी मेहनत करके हम कंटेंट डिजाइन करते हैं, अपलोड करते हैं, और कल को वो LMS ही बंद हो गया तो, राइट? देन एक ही चॉइस बचती है हमारे पास, ओपन सोर्स, विच वी हैव ए फुल्ली कंट्रोल्ड, राइट? अब ओपन सोर्स LMS भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे ओपन सोर्स LMS हैं, बहुत सारे, राइट? अगर ओवरऑल LMS भी आपको मैं दिखाऊं तो बहुत सारे LMS हैं हमारे पास। ओके, अभी तक तो हमने देखा कि कौन सा LMS डिसएडवांटेज है। यू कैन सी देयर आर plenty of LMS, right? Moodle, edX, Sky, Angel, Tutor, Course Builder, बहुत सारे हैं। एंड राइट हैंड साइड यू कैन सी द स्वयं। अब स्वयं को मैं क्या कहूँ, ओपन सोर्स है, क्लाउड है या प्रोप्राइटरी है, क्या कहूँ स्वयं? तो स्वयं इज ए रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इट्स ए डिजिटल इनिशिएटिव, आई कैन से डिजिटल इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट? एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव्स जो कंट्रोल किए जाते हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, लाइक NPTEL, स्वयं प्रभा, कल्पा, ईश्वर सिंधु, VPG पाठशाला, plenty of LMS है हमारे पास, राइट? कितने सारे हैं, यू कैन सी 44 के राउंड मैंने लिस्ट किए हैं। देयर आर सो मेनी डिजिटल इनिशिएटिव जो रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट? टू रन डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज, जैसे OER के लिए नेशनल NDL है, राइट? स्वयं के लिए है, स्कूल लेवल के लिए निष्ठा है, PM विद्या है। सो डिफरेंट लेवल्स के बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो नाउ स्वयं, इफ यू गेट a chance to run on course on the स्वयं, then स्वयं you can't do any practice over here. आप कोई हिडन ट्रायल नहीं कर सकते। इट्स अ लाइव शो, कंटेंट अपलोड करना है एंड रन करना है। अगर वहां पे कोई मिस्टेक होती है तो डोंट बी थिंक अबाउट कि वो एक मेरी इंडिविजुअल कोर्स कोऑर्डिनेटर की मिस्टेक थी, नहीं, इट्स अबाउट यूनिवर्सिटी प्रेस्टीज इशू। बिकॉज जो कोर्स रन होते हैं स्वयं पर, इट्स बाय द यूनिवर्सिटी नेम, सो इट्स वेरी सेंसिटिव प्लेटफॉर्म, दिस स्वयं काइंड ऑफ ए प्लेटफॉर्म। अब स्वयं पर प्रैक्टिस हम कर नहीं सकते, राइट? सो लेट्स डू द प्रैक्टिस ऑन अनदर LMS, जस्ट लाइक आउट ऑफ द 3 टाइप ऑफ LMS नाउ वी सिलेक्टेड कि लेट्स से ओपन सोर्स पर हैंड्स ऑन करते हैं। अब ओपन सोर्स में भी बहुत सारे हैं, ओपन सोर्स में इतने सारे में से कौन से LMS पे हैंड्स ऑन करें? क्या सारे सीखें? क्या इतने सारे LMS है, सब पे काम करें? नहीं। सो इतने सारे LMS पर वी कैन सेलेक्ट LMS Moodle। अब Moodle क्यों, रीजन मैं आपको बताता हूँ, राइट? ओपन सोर्स 3 कैटेगरी में से हम एक ओपन सोर्स कैटेगरी में आए, ओपन सोर्स में से हमने एक चूज किया, Moodle, राइट? Moodle initially launched in 1999 by the Martin Douglas, Australian research scholar, and in 20 August 2002 they launched this Moodle in a public domain.
So it means Moodle 22-year-old प्रोडक्ट है. 22 साल पुराने प्रोडक्ट की आज बात कर रहे हैं हम. 22 साल पुराना प्रोडक्ट. Right. 95% academicians across the world, they are using the Moodle. Across the world, they are using the Moodle. In fact, आपके नियर बाय कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज अगर they have their own LMS, बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज के पास अपने खुद के LMS हैं, right? And if you know any university college nearby you, जो भी आप जानते हो, just try to check out. I guarantee you 99% you will be find their LMS running on the Moodle. I guarantee you 99% their LMS running on the Moodle. We are just a 16-year-old university, 16 year, right? And we have our own LMS based on the Moodle from the day one. 16 years से हम अपना LMS खुद का Moodle use कर रहे हैं. And Moodle in existence from last 22 years. 22 years. उसके बाद बहुत सारे ओपन सोर्स LMS आए. Canvas आया 2012 में, edX आया 18 में, तो बहुत सारे LMS बाद में आए. Moodle is the oldest one and worldwide acceptance है इसकी, worldwide. And it supports 300 plus features. 300 plus features mean to say I can integrate anything within the Moodle. By default बहुत कुछ है इसमें, but still if you want to integrate anything from the outside, you can do it. Let's say कुछ paid application है, anti-plagiarism की, Turnitin, iAuthenticate, Drillbit. So you can directly integrate all these with the Moodle. So जब student अपनी assignment upload करेंगे, that will automatically check from the plagiarism software and show me the result within the Moodle. Just like right now we are connected via Zoom. So मैं इस Zoom को within the Moodle इंटीग्रेट कर सकता हूँ. So मुझे सेपरेट Moodle Zoom पर नहीं जाना है, मैं LMS पर जाऊंगा और वहीं से Zoom क्लासेस, ऑनलाइन क्लास को शेड्यूल करूंगा और वहीं क्लास ले. रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड भी हो जाएगा, ऑनलाइन अटेंडेंस भी हो जाएगी, सर्टिफिकेट्स भी हो जाएंगे. Anything you can do it. So whatever you can think related to the teaching learning activity, वो चाहे blended mode हो या online mode हो, everything, all the things are possible within the Moodle. So Moodle support many features, so many features जो आप शायद imagine भी नहीं कर सकते. I can show you, अभी जितना time रहेगा, I can show you all the features of Moodle, right? Everything supported by Moodle. So अगर हम 300 features में से, yes ma'am. सर Moodle में कोई AI सॉफ्टवेयर भी इंटीग्रेट है? AI बहुत पुराना है तो by default नहीं है, but we can integrate कर सकते हैं, right? कर सकते हैं by default नहीं है. Yes. सर ये हमने एक गवर्नमेंट का ही पोर्टल यूज करते हैं, आई गॉट ट्रेनिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म, वो भी LMS काइंड ही है वो. तो वो क्या Moodle में बना हुआ है सर? क्योंकि उसमें हमने कोड ऑफ कंडक्ट का एक हमने कोर्स किया था. ट्रेनिंग. यस सर. तो उसमें ना उसमें हमने देखा था कि कुछ वो बोल रहे थे AI जैसा फील हुआ मुझको. तो मुझे याद है कि उसमें अपने आप वो सब वर्कर्स और उसको दिखाया गया, तो वो बोल रहे थे. तो क्या वो AI से इंटीग्रेटेड है? वो क्या नाम बताया आपने? आई गॉट ट्रेनिंग. कर्मयोगी भारत सर, उसका प्लेटफॉर्म सर, भी है. कर्मयोगी भारत, आई गॉट लर्निंग प्लेटफॉर्म. राइट. सी ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं, we can integrate anything. उसमें AI इंटीग्रेशन किया जा सकता है, राइट? बाय डिफॉल्ट नहीं आते इन ओपन सोर्स में, हम इंटीग्रेशन करते हैं, राइट? कर्मयोगी, यस आई गॉट इट. हाँ सुना है मैंने, राइट? वंडरफुल. सो दैट AI जो भी है, दिस आर वी कैन इंटीग्रेट इट, और वो पेड वर्जन्स होते हैं. उसके इंटीग्रेशन के लिए AI का पेड वर्जन की रिक्वायरमेंट होती है. जो फ्री वर्जन्स होते हैं जनरली AI के, वो इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं होती है, उनकी बहुत कम होते हैं, राइट? सो उनके जैसे कि मैंने कहा टर्निटिन, जैसे एंटी-प्लैगियरिज्म पेड सॉफ्टवेयर है, राइट? सो जिसके पास सब्सक्रिप्शन होगा टर्निटिन का, मैं उसी को तो Moodle पे इंटीग्रेट कर पाऊंगा. तो जब पहले सब्सक्रिप्शन इन सॉफ्टवेयर्स के अगर मेरे पास लाइसेंसेस हैं, तो कोई भी AI मॉडल हो, डेफिनेटली वी कैन इंटीग्रेट विद इन दीज एलिमेंट्स. दीज आर ओपन सोर्स, टोटली कस्टमाइजेबल. जैसे बच्चे क्ले से खेलते हैं, डिफरेंट शेप्स बनाते हैं. सो Moodle वी हैव लाइक दिस. एनीवन कैन जस्ट डाउनलोड दिस सोर्स कोड, कस्टमाइज इट, मॉडिफाई इट एज पर देयर रिक्वायरमेंट.
This is a source code, anyone can download it from here. This is a Moodle source code. और जैसे आप चाहे मॉडिफाई किसी भी सोर्स से इंटीग्रेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से कोई भी AI कुछ इंटीग्रेशन पॉसिबल है इसमें, बहुत बढ़िया, राइट. सो Moodle सपोर्ट एज आई सेड कि 300 से भी ज्यादा फीचर, इंटरनल फीचर सपोर्ट करता है. एक्सटर्नल तो बहुत कुछ है इसके अंदर जो हम बाहर से पेड मोड को, सब्सक्रिप्शन को इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट. बट आउट ऑफ 300 अगर आप just do the hands-on on 15 feature. I'm not saying 300, 15. If you just do the hands-on on 15 feature, I guarantee you can work on any LMS. We need not to learn everyday new LMS. सारे LMS automatically आपको एक overall idea हो जाएगा how these are working and you can work very easily. But in short I can say स्वयं तो स्वयं ही हो जाए, right? So wonderful platform we have, that is the Moodle, जो biggest features support करता है and everything. It's like a sea, सब कुछ है इसके अंदर. अगर हम इस पे hands on करें, सारे LMS हम auto driven कर सकते हैं. सारे LMS का automatically हमें आइडिया मिल जाएगा कि ये कैसे काम करता है अगर हमारे पास Moodle की लर्निंग अच्छे से, right? So these are the lot of reasons कि हम क्यों Moodle को. Sir, I have one doubt. Please sir. Can we, by using this software, can we draw the graphical abstract and for research articles? Sir, LMS is not a software. Moodle is not a software. It's a LMS. LMS. It's a learning management system. Generally, I used to using PPT, Camdra for drawing. I'm coming on that. See, you are saying the graphical presentation. To do this thing, we need a different software. जैसे Gamma है for the presentation, for LaTeX for the different kind of a thing, right? So we can design the content and then we can integrate with the Moodle. So Moodle is a transact करने के लिए content. It's a LMS. राइट. सो सिक्वेंशियल प्रोसेस है. सो वी कैन ऐड एनीथिंग. जो भी कंटेंट मैंने बाहर से बनाया, कोई ग्राफिकली प्रेजेंटेशन, कुछ भी कंटेंट सॉफ्टवेयर जो भी डिजाइन किया है मैंने, जो भी कंटेंट बनाया है, अब उस कंटेंट को मैं Moodle पर लेकर आऊंगा टू ट्रांजैक्ट इट, राइट. इट्स LMS. कंटेंट डेवलपमेंट के लिए नहीं है ये. देयर आर स्टिल कुछ प्लगइन्स इसमें हैं, नॉट ऑल. कुछ इसके अंदर प्लगइन्स अवेलेबल हैं कि विद इन Moodle भी मैं कंटेंट डिजाइन कर सकता हूँ. जैसे कि H5P, hope you heard H5P. एक एग्जांपल ले रहा हूँ, राइट. H5P, create, share and reuse interactive HTML content. So H5P से मैं कंटेंट, इंटरेक्टिव कंटेंट बना रहा हूँ. जैसे भी आप किसी भी तरह का इंटरेक्टिव कंटेंट, देन उस कंटेंट को मैं Moodle पर लेके जाऊंगा. बट H5P डायरेक्टली Moodle में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है. सो अगर मैं H5P को डायरेक्टली Moodle में इंटीग्रेट कर रहा हूं तो इट मींस Moodle के अंदर H5P यूज करके कंटेंट डिजाइन वहां पर भी कर सकता हूं. सो कोई सॉफ्टवेयर अगर ऐसा है जिससे मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए यूज कर रहा हूं, सो if I am able to integrate within the Moodle, so it means within the Moodle भी मैं उस कंटेंट को डिजाइन कर सकता हूं. अदरवाइज बाहर से कंटेंट को डिजाइन करके उस डायरेक्टली कंटेंट को Moodle पर ले जाऊंगा. Both things are possibilities we have. Correct. Okay, so Moodle now the Moodle is here. अब इस Moodle को रन करने के लिए we need a technical expert. So here we are downloading the source code, and to run this source code we need a server environment जिसे हम कहते हैं LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP. Right. So that is a pure technical job कि यहाँ से सोर्स को डाउनलोड करो, सर्वर पर ले जाओ, कस्टमाइज करो, कॉन्फ़िगर करो, राइट, रेडी टू यूज करने के लिए. दैट इज अ प्योर टेक्निकल जॉब. बट ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग. इट्स फ्रीली अवेलेबल. डाउनलोड एंड यूज इट. सो हियर वी आई कैन से कि हम अगर नॉन टेक्निकल अगर हम हैं, देन Moodle को कैसे यूज करें. देन वी हैव ए अल्टरनेट. Moodle is also available on SaaS model, cloud version पर available है, with the help of Genomio. Genomio is a private firm, right? So what they did, इन्होंने Moodle को अपने server environments में install किया, and they created the multiple instance of the Moodle. जैसे कि free हम यूज करने जा रहे हैं free version में we have the features. 500 users we can create. There is a limitation. कोई भी SaaS model product हो, कोई भी, we have all the time certain limitations.
any SaaS model cloud application पे we have all the time certain limitation. जैसे Google Drive पर है ना limitation 15 GB का, somewhere you find time का limitation, somewhere storage का limitation, somewhere the credit limitation. So limitations हमेशा होंगी कोई भी cloud application या SaaS model product जब हम use करेंगे तो always we have certain limitations, always, right? एंड जैसे अगर मैं LMS ये फ्री वाला यूज करूंगा, दैट Moodle ओपन सोर्स, हियर वी डज नॉट हैव एनी लिमिटेशन, दैट इज अनलिमिटेड वी हैव. अगर ये ओपन सोर्स है तो देयर इज नो लिमिटेशन. अगर मैं SaaS मॉडल पे जाऊंगा तो डेफिनेटली वी हैव लिमिटेशन. सो Moodle कैनवस भी ऐसे ही है, कैनवस इज आल्सो ओपन सोर्स, वो भी इंस्ट्रक्चर कैनवस से क्लाउड पर अवेलेबल है. तो ऐसे ही Moodle भी जिनोमियो की हेल्प से क्लाउड पर अवेलेबल है, right? And we have a limitation: 500 registered user, 50 concurrent user, 50 courses, 2 GB storage. Storage I don't think a big deal. Storage कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे 200 MB भी होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं सारा कंटेंट तो यूट्यूब और गूगल ड्राइव से लाऊंगा. 2 GB will remain 2 GB, करेक्ट. सारा कंटेंट मेरा यूट्यूब गूगल ड्राइव पे होगा और वहीं से कंट्रोल करूंगा मैं उसको. 100 MB वन फाइल साइज लिमिट, ईमेल का सपोर्ट, दैट इज अ ब्यूटीफुल फीचर वी हैव. और एक थोड़ा सा ड्रॉबैक होगा, एड विल बी डिस्प्ले ऑन योर साइट. तो इसको थोड़ा बेयर कीजिएगा जब हम इस साइट को यूज करेंगे. तो एड विल बी डिस्प्ले, फ्री में यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो हमें इसको बेयर करना होगा, राइट. सो आप jinomio.com पर जाएंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे. होप यू डिड द रजिस्ट्रेशन, एवरीवन हैव द साइट्स. इफ नॉट, डू द रजिस्ट्रेशन. विद इन 2-3 मिनट यू विल गेट योर ओन Jinomio Moodle site, right? On Jinomio, जैसे कुछ आपको मिल जाएगा URL, just like I have a URL dbishla.jinomio.com. Backend Moodle here with certain limitation. So any SaaS model application we have certain limitation. Okay, आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, राइट? इसी से कनेक्टेड है कि जितने भी SaaS मॉडल प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, जितने भी up to that limitation, up to that restrictions, right? Up to that limitation या restriction, जिसे हम कहते हैं ट्रायल वर्जन कहते हैं या बेसिक वर्जन हम जनरली जिसे कहते हैं, right? So up to that limitation या up to that this restrictions, what do you think, is that free? What do you think, is that free? पानी दो सर, सारे तो नहीं है फ्री. जैसे ओपन रिसोर्सेस वाले फ्री हैं और बाकी के तो पेड है ना. नहीं, ओपन सोर्स को मैंने साइड में कर दिया, ओपन सोर्स की मैं बात ही नहीं कर रहा. अब सिर्फ मैं SaaS मॉडल एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज क्लाउड एप्लीकेशंस जो हम यूज करते हैं विद सर्टेन लिमिटेशन तक. किसी में टाइम, किसी में स्टोरेज, क्रेडिट, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, करेक्ट. सो अप टू दैट लिमिटेशन क्या वो फ्री है? Yes, sir, it's free. हाँ, स्टार्टिंग में इनिशियली तो फ्री है. ठीक है, फ्री है. हाँ, फ्री हाँ. है, लेकिन अपना वो डाटाबेस के बेसिस पे फिर वो कहीं ना कहीं लिंकअप. ओके, फ्री है, राइट. ओके, नाउ लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं वहां पे. जैसे हमने वो कार्ड्स वाला देखा था कि किसी पे स्लाइड्स जो थी ना वो 10 कार्ड्स तक ही था. हाँ, उसके बाद पेड शुरू हो गया था. That's I said, up to that limitation free है या नहीं? Up to that limitation, It's free. I think. Yes, sir, it is free up to the certain limitation. certain limitations फ्री है. ओके, नाउ आई विल क्लियर ऑन दैट. इस फ्री के चक्रव्यूह से बाहर आइए. नथिंग इज फ्री इन दिस साइबर वर्ल्ड. नथिंग इज फ्री. Very simple definition of free is if you are not paying for the product. I repeat, if you are not paying for the product, you are the product. Now, how you are the product? Our information. Our data. yes Data. yes installation data use Basic data. yes, They will get Yes. access to our system. डाटा डज नॉट इंटरनेट डाटा. मैं इंटरनेट डाटा की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो अनलिमिटेड है हमारे पास. पर्सनल डाटा. हाँ, कहीं ना मैंने एक लाइन ऐड किया था सर कि कहीं ना कहीं वो अपना डिटेल्स शो करके. तो इस फ्री के से बाहर आइए. नथिंग इज फ्री इन दिस साइबर वर्ल्ड.
और इसीलिए हम ओपन सोर्स को प्रेफरेंस देते हैं. देयर आर लॉट ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दे आर जस्ट प्रमोटिंग द ओपन सोर्स कि हमें सिर्फ ओपन सोर्स ही यूज करना है. जैसे यू कैन सी बहुत सारे हैं डिजिटल इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Fossis.in, Fossis, right? Here, Fossis.in. Some issue I think with this site. अभी शायद कुछ problem है इस site में. Fossis.in, yeah, open हो रहा है. Yes, you can see. Fossis.in. There's a wonderful digital initiative by the government of India. You can see here they clearly mention Fossis tool in academic and research. This project is part of National Mission of Education through Information and Communication Technology, Ministry of Education. There are a lot of open source software that are available. There are so many digital. We have Spoken Tutorial, right? SpokenTutorial.org. You can see an initiative of National Mission on Education through Information Communication Technology, Ministry of Education, Government of India to promote the IT literacy through open source software. Right. So you can see government also promoting to use of open source only, because reason behind that the actual meaning of free is open source. Open source. So जैसे OBS open source है, Moodle open source है. So we have to prefer to use open source software. But सभी चीजें मुझे open source में नहीं मिलती हैं, तो मुझे क्लाउड मॉडल की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है. और वहां पर जो ये बेसिक वर्जन हम यूज करते हैं, वी थॉट इट्स फ्री. नथिंग इज फ्री, इट्स नॉट फ्री. एक्चुअली वी आर यूजिंग प्रोडक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन. हाउ वी आर डूइंग इट? See, any application we have to do sign up registration. What does mean of that sign up registration? We have to share our information. Information. Name, email address, name, contact location, right? Location, mobile number, बहुत सारी चीजें मुझे enter करनी पड़ती हैं. And this is the information. Create an account, yes. Right. Even while we are using these applications, during the usage भी मुझे कुछ information वो पूछता है बार-बार, right? वो भी. So on the cost of our information, we are using these products, and information is the huge cost which we are paying. Huge cost. Yes, sir. इसलिए सर वो प्रोडक्ट बोला गया है कि हम प्रोडक्ट हैं. यस सर. टेक्निक भी आपको बताएंगे. चलो ये तो मैंने प्रॉब्लम बताई, सोल्यूशन पर भी आएंगे. कैसे करना है, राइट? सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, अगर आप एक वीक की पूरी साइबर अवेयरनेस वर्कशॉप भी डील कर लेना, तो लास्ट में कंक्लूजन उसका यही निकलेगा, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर इंफॉर्मेशन. यस सर. वो डीएनए रिपोर्ट भी आई है अभी कि हमारा डेटा वो बेच देते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं वो बेच देते हैं सर. और फिर उसके बाद अभी इंडियन सबसे ज्यादा उसमें हैं, तो यूट्यूब और इसमें हमारे अलाउड ना करें, वो सब परमिशंस अलाउड ना करें. तो मैंने ये देखा था सर. ये I'll show you, अगर कुछ AI के टूल्स पर डिस्कशन हुआ तो I'll let you know वो कैसे काम करते हैं और कैसे इन्फॉर्मेशन को भेज रहे हैं. इवन जब हम मोबाइल से ऐप भी डाउनलोड करते हैं, 99% मोबाइल एप्स विल आस्क यू टू थिंग, कॉन्टैक्ट एंड लोकेशन. SMS कॉन्टैक्ट लोकेशन 99% आपको पूछते हैं. सो व्हाट इज दिस इज शेयरिंग. जब भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो बी केयरफुल कि इन्फॉर्मेशन को शेयर ना करें. इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी इज द बिगेस्ट कंसर्न, बहुत बड़ी कंसर्न है. सोशल मीडिया को जनरली हम क्या कहते हैं? सोशल मीडिया इज heaven for the cyber criminals. Why? Because lots of personal information are available on the social media. बहुत सारी information available. So we have to protect our information. Information security is the biggest concern. Have you remember कि जब आपने इंटरनेट यूज करना शुरू किया था अपनी लाइफ में 10, 15, 20 year ago, जब भी आपने इंटरनेट शुरू किया था करना 10 year back, where you did the registration, where you shared your information, क्या आज आपको याद है? Being a human possible ही नहीं है याद हो, right? But this cyber world, never forget. These informations are still there and they can use this information against us in future anytime. Means अपनी लाइफ को हम ऑलरेडी स्टेक पर लगा चुके हैं और वो ब्लास्ट कब होगा इन फ्यूचर हमें खुद नहीं पता. ऑलरेडी दैट्स व्हाई सेड कि आप गूगल पे किसी का भी नाम लिखिए, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा. वो कैसे आ रहा है? कहीं हमने इंफॉर्मेशन दी है उनको, तभी आ रहा है. यूट्यूब पे भी होता है सर ऐसा. यूट्यूब पे भी होता है. Everywhere, right? I have thousands of video, but आप YouTube पे जाइए, सर्च कीजिए, आपको एक भी नहीं मिलेगी. All are controlled. जिसको चाहिए मैं उसी को शेयर करूंगा.
राइट। सो बहुत सारी चीजें हैं जो कंट्रोल करनी पड़ती हैं, पब्लिक कुछ नहीं मिलेगा, राइट। यू विल बी सरप्राइज, मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं हूँ, बीइंग ए हार्डकोर टेक्निकल पर्सन। मेरा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट नहीं है, किसी भी। एक व्हाट्सएप है, ठीक है, यूज करना पड़ता है, ऑफिशियल पर्पस। उस पर भी पता नहीं 15 साल पहले जो डीपी लगाई थी वही चल रही होगी आज तक, कौन सी है, राइट। सो वी हैव टू सर कॉल्स सर Yes. सर कॉल्स में भी तो सर यही प्रॉब्लम आ रही है। डीएनए रिपोर्ट जो आई है अभी, उसमें भी तो कॉल भी हमारे सुने जा रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि हम रियल एस्टेट में बात कर रहे हैं कि कहाँ, और उसके बाद सीधे मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। नहीं, कॉल्स टैपिंग तो खैर बड़ी बात हो जाती है, वो दूसरा एनालिसिस होता है एक तरह का, जो हम यूज करते हैं एप्लीकेशंस को। दे गेट डाटा एंड आफ्टर दैट दे आर डूइंग द एनालिसिस कि ये एक सेगमेंट है रियल एस्टेट के लिए, ये एक सेगमेंट है क्रेडिट कार्ड के लिए, ये एक सेगमेंट है पॉलिसी के लिए, राइट। आफ्टर एनालिसिस करते हैं उन चीजों को, देन दे मेड ए कॉल, राइट। किसी रेडी पटरी वाले को वो एलआईसी के लिए, पॉलिसी के लिए फोन नहीं करेंगे, राइट। उनके पास फोन लोन के लिए फोन नहीं जाता है, राइट। सो ऑलरेडी दे आर डूइंग सम एनालिसिस कि किस कैटेगरी पे किसको क्या करना है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो एल्गोरिथम होता है, ऑटोमेटिक एल्गोरिथम चलता है। सो ओवरऑल मीन टू से कि हमने जितनी भी एप्लीकेशंस यूज करते हैं, वी हैव टू बी केयरफुल कि वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर इंफॉर्मेशन। नथिंग इज फ्री इन दिस साइड। अब इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करने की सिंपल सी टेक्निक अब आप सुन लीजिए, देन आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी ट्रिक है इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोटेक्ट करना है, नॉट ए रॉकेट साइंस, बहुत आसानी सी छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमारी लाइफ को आसान बनाती हैं जब हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, right? You know, excess use of everything is harmful. Excess food is harmful, excess exercise is harmful, excess use of technology is also harmful, correct? Excess use of everything is harmful. So बहुत सिंपल सी ट्रिक्स हैं जिसको लेकर हमें टेक्नोलॉजी को हम छोड़ नहीं सकते। इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ, राइट। इट्स अ मैंडेट टू अस कि इसको यूज की है, बट विद दी सेफ्टी। और सेफ्टी की छोटी सी टिप आपको शेयर करता हूं अभी कि इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोटेक्ट करना है, राइट। सो व्हेन वी आर डूइंग द रजिस्ट्रेशन ऑन दिस वेबसाइट, फर्स्ट ट्राई टू एनालाइज कि ये किस तरह की वेबसाइट है। लेट्स से इट्स काइंड ऑफ ए, फॉर एग्जांपल ये स्वयं है, सो ऑफ कोर्स आई कैन एंटर माय रियल इंफॉर्मेशंस, आई कैन rely on these platforms, authenticate platforms है। just like कोई अदर में AI की कुछ applications यूज कंटेंट डेवलपमेंट के लिए या किसी तरह के लिए, राइट। देन while I'm doing the registration here, why I'm using the email ID which is linked with my internet banking or primary communication, why I'm entering the mobile number which is linked with my internet banking. See, you can open n number of email ID, no one can stop you. Use that third email ID for the registration. Use the dummy number. Sometimes we get a real number to get the OTP, then enter a different number which is not linked with your internet banking. Everyone have a dual SIM phone, दूसरा डाल कीजिए ना, right? If you need a OTP, right? Try to protect your information. एक एप्लीकेशन में कुछ restrictions हैं, मान लीजिए पर डे 10 क्रेडिट का लिमिटेशन है, राइट। या एक अकाउंट से मैं वन स्टोरेज का लीजिए एप्लीकेशन में, क्लाउड एप्लीकेशन में लॉगिन किया, तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि आप 1 GB से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। ओके, 1 GB खत्म हुआ, फिर 1 GB तीसरी, इन एप्लीकेशंस को अनलिमिटेड यूज कर सकता हूं, अनलिमिटेड वे में यूज कर सकता हूं, डूइंग रजिस्ट्रेशन अगेन एंड अगेन, करेक्ट। सो अब नाउ यू माइट बी थिंकिंग, यार कितनी ईमेल आईडी बनाएंगे, मुश्किल हो जाएगा, बार बार नई ईमेल आईडी, राइट। उसकी भी ट्रिक्स आपको बता देता हूँ। अब ईमेल आईडी बनाने में मुझे रिकवरी ईमेल आईडी भी अपनी देनी होगी, नाम भी देना होगा, कुछ ना कुछ, उसकी ट्रिक्स देख लीजिए क्या हो सकती है। हैव ए लुक नाउ। वी कैन ओपन द ईमेल टेम्प ईमेल। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं विच जनरेट द टेम्परेरी ईमेल आईडी, बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी। वन ऑफ देम इज हियर tempmail.com, राइट, tempmail.com। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऐसी, tempmail.com। दूसरी देख लेते हैं, अगर नहीं चल रही है तो चल रही, वो भी ओपन शायद। tempmail,
Okay, दूसरा ओपन कर लेते हैं, कोई नहीं, साइट में कुछ प्रॉब्लम है तो टेम्प ईमेल बहुत सारी है, tempmail.org, yes you can see there are lot of website temp mail की। तो यहाँ से you can see जैसे ही मैंने इस साइट को ओपन किया, एक ईमेल आईडी बन रही है यहाँ पर, इस जनरेटिंग ईमेल आईडी बन गई। ईमेल आईडी को कॉपी करके मैं इस आपको ईमेल आईडी चैट बॉक्स में दे रहा हूँ। ओके, ट्राई टू सेंड मी द ईमेल, जस्ट हाय हेलो ऐसे ही लिखिएगा, सेंड टेस्ट मेल लिख के मेल कीजिए मुझे इस ईमेल आईडी पर जो अभी मैंने टेस्ट चैट बॉक्स में आपको दिया है। ट्राई टू सेंड मी द ईमेल, चैट बॉक्स में मेल आईडी दिया है आपको मैंने, राइट। जस्ट टेस्ट मेल हाय हेलो टाइप करके मुझे रिप्लाई कीजिए ऑन दैट ईमेल। डू इट। Yes, sir. Done. Done. Okay. And Yes, sir. your email will be appear here. Just wait. It's refreshing it. It's refreshing it. You can see here your inbox is empty. अभी यहाँ पर मेल आ जाएगी। Wait for incoming mail आ गया। You can see सर आपका मेल आ गया। Hi. Yes, sir. सभी मेल यहाँ पर आ जाएंगे। Correct. See, सेकंड्स में मेल आईडी बन गई और उस पर मैं मेल कर पा रहा हूँ। So अब मुझे जब रजिस्ट्रेशन करना है, मैं इस ईमेल आईडी को वहां यूज करूंगा। और जनरली जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो क्या होता है, से ईमेल आईडी या तो मुझे वेरिफिकेशन लिंक देता है या ओटीपी। सो वेरिफिकेशन लिंक मुझे यहाँ पर मिल जाएगा या ओटीपी, और उस अकाउंट को मैं एक्टिवेट कर लूंगा। अब मेरा अकाउंट रनिंग है, राइट। और मैं बिना ईमेल आईडी जनरेट किए, बिना कोई इंफॉर्मेशन शेयर किए कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन कर पा रहा हूँ, राइट। मेरी इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट हो रही है, दैट्स द बिगेस्ट थिंग इज हियर। और ना ही मैं कोई मेल आईडी जनरेट कर रहा हूँ, जस्ट सिंपली सेकंड में। अब मैं ब्राउजर करता हूँ बंद, अब ये ईमेल आईडी गई, नाउ इट्स नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। अब यू विल गेट द बाउंस बैक नाउ अगर आप ईमेल करें। अब मैं जैसे उसको करूंगा, नई ईमेल आईडी मुझे मिल जाएगी। सर इसमें कुछ आगे और एक्सेस करना हो, कुछ करना हो, जिससे रजिस्ट्रेशन किया है हमने। सर इसका नाम ही टेम्प ईमेल है, टेम्परेरी ईमेल। ये हेलो सर, जिस पर्पस से हमने यूज किया है उस पर्पस को यदि हमें आगे और यूज करना है या कुछ, फिर आप अपनी जीमेल काइंड ऑफ पे नया ईमेल आईडी ओपन करें। ये टेम्परेरी ईमेल आईडी है, जस्ट फॉर वन एट ए, जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स के लिए ऑन किया, रजिस्ट्रेशन किया, अकाउंट में लॉगिन कर लिया, दैट्स इट। जैसे ही ब्राउजर बंद किया, अब ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि जनरली हम जो मेल आईडी यूज करते हैं तो उसमें हमें सोचते हैं कि उस पर ऑलरेडी कुछ हिस्ट्री इंफॉर्मेशन रहती है, फिर से लॉगिन करना हो या कुछ एक्सेस करना हो, तो इसलिए हम यूज करते हैं। तो आप जीमेल पर मल्टीपल आईडी ओपन कर लीजिए, वो एग्जिस्ट रहेगी। ये नाम ही टेम्परेरी ईमेल आईडी है, यू कैन जस्ट रिसीव द ईमेल, सेंड नहीं कर सकते हो, जस्ट रिसीव। टेम्परेरी नाम ही टेम्परेरी है। टू गेट द लिंक्स एक्टिवेट किया एंड दैट्स इट। सो इससे बेनिफिट क्या हुए मेरे, एक सेकंड में मैं ईमेल आईडी जनरेट कर पा रहा हूँ और बिगेस्ट एडवांटेज इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट कर पा रहा हूँ। मतलब ये इसलिए है कि जस्ट कुछ टेम्परेरी बेसिस पे हमें यूज करना है कोई, तो उसके लिए हम यूज करके फिर उसको भूल जाए। एग्जैक्टली, भूल जाए, इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट हो जाएगी मेरी। सबसे बड़ी चीज इंफॉर्मेशन, राइट। ओके, सो अब सर इसका वैलिड ये कितने टाइम पीरियड के लिए वैलिड होती है, लाइक 1 डे या 1 आवर? ऐसे ही ब्राउजर बंद किया है, बस खत्म बात। अच्छा, मतलब जब तक ब्राउजर ओपन रहेगा तब तक ये मेल एक्टिव रहेगी। दैट्स इट। सो प्रैक्टिकली ये डे टू डे पर्पस में ये ईमेल आईडी को हम कैसे यूज कर सकते हैं? लेट्स फॉर इंस्टेंस, ओके, फॉर एग्जांपल, चलिए इसके बाद फिर टी ब्रेक लेंगे, जस्ट 2 मिनट और। जैसे ये एक AI एप्लीकेशन है रिसर्च वर्क के लिए, जोटबोट एक एप्लीकेशन है रिसर्च वर्क के लिए, राइट। रिसर्च का काम इस पे हम कर सकते हैं, टू फाइंडिंग द राइट वर्ड्स एंड द सोर्सेज। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। अब मुझे इस पे रजिस्ट्रेशन करना है, राइट, टेम्परेरी है। इस पे लिमिटेशंस क्या है? 10 क्रेडिट की लिमिटेशन है, और 10 क्रेडिट मेरे में इसमें एक दिन में आसानी से खत्म हो जाते हैं, राइट। अब वो लिमिटेशन खत्म हो गई, लेकिन मेरा काम खत्म नहीं हुआ, करेक्ट। तो जैसे वो लिमिटेशन खत्म होती है तो मैं साइन आउट करूंगा, फिर से साइन इन करूंगा, राइट। इसको मैं अभी साइन आउट, साइन इन विद ईमेल, राइट। यहां पर ईमेल मुझे टेम्प मेल यूज करूंगा, राइट। टेम्प मेल
यहाँ पे अब नई ईमेल आईडी जनरेट हो रही है कोई, नई मेल आईडी किया, इसको कॉपी किया, जॉट पोर्ट पे गया, सेंड लिंक, यहाँ से लिंक जाएगा उस मेल आईडी पर, सेंड। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मुझे यहाँ पर वो मेल मिल जाएगी। जस्ट वेट करते हैं वेट करते हैं, थोड़ा सा नई मेल आएगी यहाँ पर, जिस पर ये यहाँ से मुझे वेरिफिकेशन लिंक आया होगा टू डू द रजिस्ट्रेशन। And there is the link. That's it. Welcome to JotPot. हो गया रजिस्ट्रेशन, राइट? और अब मैं इस एप्लीकेशन को यूज कर सकता हूँ विदाउट शेयरिंग माय इंफॉर्मेशन, एंड सो क्विकली यू कैन सी मेरा ईमेल आईडी ये सब बन पा सो क्विकली। तो इस तरह से इसको यूज करना है। रजिस्ट्रेशन हो गया। अब वो ईमेल आईडी अगर आप चाहते हैं दोबारा कैसे लॉगिन करूँ उस ईमेल आईडी को, आप नोट कर लीजिए फिलहाल के लिए कि इस JotBot अकाउंट पर मैंने जो रजिस्ट्रेशन करना है वो कैसे करना है। तो ये मेरा ईमेल आईडी होगा और JotBot था और उसका पासवर्ड क्या था, सो आप उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, राइट? सो नोट डाउन, यू कैन डू इट। अदरवाइज भूल जाइए, उसके क्रेडिट खत्म हो गए हैं तो दूसरी ईमेल आईडी से कर लेंगे। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ओके, आई थिंक अब ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक के बाद डिस्कशन अच्छा रहा, बहुत बढ़िया, आपने इतने क्वेश्चन पुट अप किए तो अच्छी डिस्कशन निकल के सामने आती है। ओके, अब हम नेक्स्ट डायरेक्टली LMS पर काम करना शुरू करेंगे, हाउ टू डिजाइन द कोर्स। टिल नाउ वी क्लियर कि LMS क्या होते हैं और हम LMS तक आए कैसे, और LMS कौन सी स्टेज पर है। मैं डायरेक्टली अगर हो सकता है सेशन शुरू करते सीधा मॉडल शुरू कर देता, जिनोमी मॉडल। मुझे लगता है आपके डाउट्स रहते हैं कि डायरेक्टली जिनोमी मॉडल क्यों, राइट? हम कहाँ हैं इस ओवरऑल स्ट्रक्चर में, इस कंप्लीट वर्कशॉप में हम कौन सी स्टेज पर हैं, ये क्लैरिटी जरूरी थी, राइट? सो इफ यू हैव ए क्लैरिटी, कोई डाउट है तो आई कैन टेक वन और टू क्वेश्चन क्विकली, अदरवाइज गो फॉर द ब्रेक। अच्छा, तो ठीक है, मैं आ रहा हूं। उसमें थोड़ा सा आप बताएंगे कि कैसे वो हमारे लिए यूजफुल है। जैसे मैं जूलॉजी बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से हूँ। मैम ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि मैंने कहा कि टाइम परमिट तो बहुत कुछ है मेरे पास, तो बहुत कुछ है AI को लेकर। तो JotBot इज जनरली फॉर कि लेट्स से यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड द वर्ड्स। जैसे मैंने टाइप की एक लाइन कि टेक्नोलॉजी इज लाइक ए डबल एज नाइफ, देन मैं नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट वर्ड को स्ट्रगल कर रहा हूँ कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट लाइन, देन दिस JotBot विल ऑटोमेटिकली सजेस्ट मी कि ये लाइन हो सकती है। Then again I start typing और मैं रुक गया, right? I'm trying to find out the words. Then JotBot will suggest me कि इसके आगे ये words हो सकते हैं which you can write, right? That is the one thing in the JotBot, trying to find out the words where you are struggling. Another is कि मैंने जो लिखा पैराग्राफ मेरा बनता चला गया, right? अब मुझे उसका citation भी देना होगा कहीं, right? So मैं अब complete पैराग्राफ में इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आई कैन फाइंड दी सोर्सेज, और मुझे इस सोर्सेज की लिस्ट दे देगा। अब उन सोर्सेज को मैं साइट कर सकता हूँ, साइटेशन भी दे सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा काम करता है। एक और सर छोटा सा क्वेश्चन। थैंक यू। यस सर। बस फिर जल्दी आपको फ्री कर दें। जो आपकी जो PPT है उसमें साइड में बड़ा अट्रैक्टिव गुड मॉर्निंग सा आ रहा है, और जो आप टीच कर रहे थे वो भी स्लाइड वहां पे डिस्प्ले हो रही थी, तो उसको हम कैसे शेयर कर सकते हैं? सर ये AI है। हाँ, ये AI ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेजी। ओके, तो इसको हम बताएंगे, अभी आपको टाइम मिला तो जरूर बताएंगे। ये AI ही है। सर मैंने इसको ट्राई किया था, आपका ये देख के पेड वर्जन है सर, ये $5 मांग रहा है। मैडम 4 सेशंस में आपके साथ हूँ, 4 सेशंस में मैं एक भी सॉफ्टवेयर नहीं बताऊंगा जो पेड में हो। ठीक है सर।
अगर पेड होगा तो मैं अलग से उसको डिस्क्लेमर दे दूंगा कि हाँ ये पेड है, अदरवाइज मैं एक भी सॉफ्टवेयर आपको नहीं बताऊंगा जो पेड मोड में अवेलेबल हो। माय टारगेट इज, मैंने आपका वो प्रेजी वीडियो देख के थोड़ा सा ट्राई किया उसको, पर वो क्या है 14 दिन तक फ्री बता रहा है, फिर वो मैं कितने सालों से यूज कर रहा हूँ इसको, कितने सालों, राइट। तो जो फ्री में अवेलेबल है, जो फ्री में अवेलेबल है, मैं सिर्फ उन्हीं की बात करूंगा। हमें सिर्फ चाहिए सर अभी तो आप कह रहे थे कि इस वर्ल्ड में कुछ भी फ्री नहीं मिलेगा आपको। अब उसको बचने की टेक्निक भी आपको बता दी मैंने, उससे कैसे बचना है, राइट। जैसे कि मैंने कहा कि मैं किसी सोशल मीडिया पर नहीं हूँ, मेरा अकाउंट नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सोशल मीडिया को जानता नहीं हूँ। आप किसी भी सोशल मीडिया को लेकर कुछ भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा अकाउंट नहीं है तो मैं सोशल मीडिया को नहीं जानता, हो सकता है किसी और नाम से हो, राइट। होप यू गॉट माय पॉइंट, करेक्ट। सो अपने आप को प्रोटेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को मिनिमाइज डिजिटल फुटप्रिंट, ये बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी इट्स लाइक ए डबल एज नाइफ, दो धारी तलवार की तरह है, राइट। हम एक साइड यूज करते हैं, दूसरी साइड भी देख के चलिए ना, कहीं कट ना जाए, राइट। तो दोनों तरफ देख के चलना है, यूज करेंगे ऑफ कोर्स, ये एआई भी आपको बताएंगे। तो बट हमें एजेंडा से नहीं मूव होना है, एलएमएस मॉडल उससे नहीं दूर जाना है। हम बार बार मैं उसकी तरफ जाने की कोशिश करता हूँ, फिर कुछ डिस्कशन में निकल के आता है, थोड़ा साइड में हो जाते हैं हम, राइट। सो वी हैव टू ट्रैक कि हमें एलएमएस पर फोकस करना है, कोशिश करेंगे वहीं चलेंगे, बिकॉज बट डिस्कशन भी जरूरी है। इट्स गिव अस ए फील कि हाँ हम एक ऑफलाइन वर्कशॉप की तरह बैठे हैं, वो भी बहुत जरूरी है, राइट। वो अदरवाइज वन पे हो जाएगा कि एलएमएस बोलता रहूंगा, तो वो भी ठीक नहीं है। इंटरेक्शन भी बहुत जरूरी है। सो बहुत बढ़िया सेशन था सर, पहला सेशन आपके साथ। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू ओके सर, बाय। ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. Just a small part of information from my side कि हमारे साथ एक प्रतिभागी हैं जो कि स्विफ्ट कार के नाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर, मैडम, अब आप अगर आपका सही नाम भी इसको चेंज करेंगे तो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दैट फॉर अटेंडेंस। और मुझे नहीं लगता कि आप सुन रहे हैं मुझे। सो जस्ट फॉर एन डिस्क्लेमर थिंग, आई हैव अनाउंस्ड इट ओवर हियर आल्सो। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपका स्क्रीनशॉट डाल के खींच के वहां पे स्पेसिफाई कर दिया है कि लास्ट 8 days वी आर रिक्वेस्टिंग कि आप आपका नाम का विशेष तौर पे ध्यान रखें, बट टुडे वी विल नॉट गोइंग टू अलाउ दैट। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। sir, already you have told this Yes, so sir. many times, so many times. I think the participant should be serious to. Sir, exactly for that reason only I am announcing that, क्योंकि अटेंडेंस इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट और उसमें फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे।